Sorry.
Hello, can you hear? University of Engineering and Management, also known as UEM, aims to provide facilities and exposure to its students with innovative teaching techniques and courses relevant for the industry, giving students competitive advantage during placements. All students of University of Engineering and Management Jaipur on an average bagged 1 to 2 job offers in companies like TCS, Infosys, Tech Mahindra, Capgemini, Ericsson, Tata Motors Group, Adroit Technologies, and they perform excellently well. The group boasts of a strong placement cell with dedicated placement officers under the chairmanship of the group's chancellor and the vice chancellor. So we are placed with Infosys by our campus recruitment. This campusing season is not very easy for an engineer. One has to go through many phases such as stress management, and they have to sort out their what are their disabilities or their shortcomings, and they have to overcome them in a limited amount of time. The students of our IMUM group are lucky enough to have the wonderful panel of teachers and training and placement officers that have guided them throughout and has given them encouragement to achieve their goal. Our college ensures that renowned companies come to our college for placements. The students are well groomed on the technical and the soft skills through training sessions for the placement drives. My college has helped me in the whole process of placement training. Our teacher has helped us to overcome all the technical difficulties and all the questions which were asked in our placement interview so that we can crack it and achieve a good result. Both of us have been placed in the company called Capgemini. We are all placed in Tech Mahindra. In our pre-placement training, college took many mock tests, many online tests, pen and paper tests of aptitude, and we used to submit like 300 aptitudes every month, and that helped us a lot when we were sitting for a placement. So if you are looking for holistic development and successful career growth, do visit the University of Engineering and Management, Jaipur.
Not audible, not audible. Hello, yes, sir. Yes, madam, you are audible. Audible, na? Yes, yes, sure, sure. Good afternoon, one and all. It's audible? Yes, sir, audible. Hello. Yes. Hello, sir. Yes, madam, you are audible. Tarun, sir. Madam, you are audible. Okay. Okay. So, good afternoon, one and all. I am Dr. Praful Chhabra, convener of this faculty enrichment program of 7 days. Welcome all of you on the behalf of Department of Mathematics and Statistics, University of Engineering and Management, Jaipur, on the third day of this 7 days international FDP on advanced tools and techniques for scientific research writing and publication. Participants, on the first day, we had interacted with Professor Lilan Gurung, who discussed about how to write a scientific research paper for getting publication in SCI and Scopus journals. And on the second day, Professor Anup from Sharda University discussed about how to write a project proposal and challenges, etc. Now, on today, on the third day of this FDP, we have Mrs. Pooja Kumar,
and she will talk about how to write a patent, filing process, etc. So before start the session by ma'am, I just want to discuss his profile. Mrs. Pooja Kumar is founder and director of Innov Intellect LLP, established in 2017. She is also a registered patent agent and startup facilitator of Government of India. She holds more than 15 years of experience in intellectual property rights fields. She has won gold medal in master's degree in microbial and food technology from Punjabi University, Patiala. Besides that, she had also qualified GATE examination in 2008 and Indian Patent Agent examination in 2010. She has delivered more than 200 awareness programs related to intellectual property rights. Recently, in 2020, she is recognized as a top women consultant for her contribution in the field of IPR. She has empaneled with Gujarat Innovation Council, MIET, KEC, ITS Greater Noida, GL Bajaj Institute, Axis College, ABES, Manipal University Jaipur, NIET Greater Noida, NIT, Jaipuria Institute of Management, IIM Kashipur, Motherhood University Roorkee, and SRM College Bareilly. She has been mentoring various startups in the field of life sciences, biotech, pharma, and engineering for the last 10 years. She is not only creating IP awareness in India, but also working for international countries. Recently, she was invited as panelist in Nigeria for one IP radio station. She is currently mentor for JIIPCC, South Africa, for creating awareness for law students. She has received various awards and recognition in her professional journey. On the occasion of World IP Day, she delivered 8 lectures in different universities and institutions. So it's a profile of our speaker today. Now I request Mrs. Pooja Kumar, our speaker, to take over the session. Ma'am? Okay. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. So I'm just sharing my screen. So I've just shared my screen. Is my screen is visible to all of you? Yes, madam. Absolutely. Yes. Yes. Okay. So thank you, sir, for giving this opportunity for lecture. You know, when we are talking about the patent system related to mathematics, it was very hard to get a patents on mathematics. Fine. Okay. But nowadays, what the people are doing, the patent office says, अगर आप उसको IT के साथ indulge कर देते हैं, IT के साथ implement करते हैं कहीं ना कहीं, CS के साथ, ठीक है, जो algorithms हम लोग develop कर रहे हैं, तो algorithm भी क्या है कि coding है, ठीक है, तो एल्गोरिथम के साथ अगर आप उनको कनेक्ट कर देते हैं देन दे गेट अ पेटेंटेबल. बट अगर आप जनरल बोले कि मैम हमारे पास एक मैथमेटिकल फॉर्मूला है, आई वांट टू फाइल अ पेटेंट फॉर द समथिंग, दैट कैन नॉट बी पेटेंटेड. मैथमेटिक्स को पेटेंट ऑफिस समझता है कि वो एक मेंटल स्किल है, मेंटल एक्ट है, ठीक है, मेंटल स्किल के थ्रू हम किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं. सो उसके अकॉर्डिंग पेटेंट ऑफिस मैथमेटिक्स को जनरली अगर आप उसको सीएस के साथ इंप्लीमेंट नहीं करें या फिर आप एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन टेक्निकली नहीं सॉल्व करके दिखा रहे हैं तो पेटेंट ऑफिस उसको डिनाई करता है पेटेंट फाइलिंग के लिए, जो कि हमारे सेक्शन 3 में ऑलरेडी कहा गया है कि अगर मैथमेटिकल इक्वेशंस है, मैथमेटिकल फॉर्मूलाज है, दैट कैन नॉट बी पेटेंटेड. और दूसरा, इसको मैथमेटिक्स को बिजनेस मेथड्स भी जो है वो उनको भी वो पेटेंट ऑफिस वाले डिनाई करते हैं. सेम कॉपीराइट के लिए भी है कि अगर आप बोले कि मैम कॉपीराइट कर सकते हैं कि नहीं, तो कॉपीराइट में बहुत सारी प्रॉब्लम है. कॉपीराइट में भी जब हम फॉर्मुलाज को कॉपीराइट करते हैं तो फिर पेटेंट ऑफिस कहते हैं नहीं, आप फॉर्मुलाज को कॉपीराइट नहीं कर सकते हैं. कॉपीराइट कर सकते हैं अगर कोई कंटेंट है, कोई लिटरेचर वर्क है जिसका थोड़ा बहुत कनेक्शन है एल्गोरिथम से, या कुछ कोई ऐप आपने डेवलप की है, ठीक है,
तो आप उसका पूरे का कॉपीराइट फाइल कर सकते हैं। बट एज सच अगर मैथमेटिक्स को, प्योर मैथमेटिक्स को आप बोले कि आप इसको आईपीआर की थ्रू प्रोटेक्ट करें तो इट्स वेरी हार्ड। ओके, सो नाउ बट द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ पेटेंट फाइलिंग, क्या प्रोसेस होता है फर्स्ट, उसके लिए सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि आईपीआर होता क्या है। Intellectual property rights, it's a creation of human mind that is intangible nature. It cannot be defined by any physical parameter. It can be anything. It can be any defined, like it can be any process. It can be any composition. चाहे कोई keyboard है, चाहे कोई mouse है, चाहे कोई system है, anything can be patented. That these are the rights which are given to a person over the creation of mind. जो भी आप create कर रहे हैं, जो भी आप invent कर रहे हैं, जो भी आप research कर रहे हैं, so these are the rights which are given to the inventor for the creation. So now the types of IPR we have different types of IPR, like we have patents, trademark, copyright, design, GI, and trade secrets. So patents are generally giving to the problem solving, like you have any problem or you are solving that invention using some algorithm or using some, like for example, ब्लड मॉनिटरिंग डिवाइस। ओके, जो शुगर मॉनिटरिंग डिवाइस जो आजकल हम एक्को चेक घर पे आजकल अपनी हम शुगर चेक कर लेते हैं, ठीक है, तो वो भी आप देखो कहीं ना कहीं क्या है कि अगर आप उसको पेटेंट करना चाहते हो, ठीक है, कि आप चाहते हो कि मैम हमने एक डिवाइस बनाई है जिसके हम अंदर एल्गोरिथम यूज कर रहे हैं, तो ब्लड, अब सपोज एग्जांपल लेते हैं, इंप्रूविंग ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग। तो ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग डिवाइस क्या कर रहा है, वो एक मेजरमेंट ले रहा है फ्रॉम पेशेंट। मॉडर्न मेथड ऑफ ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग क्या कर रहा है, डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग प्रिंसिपल को यूज करके उसकी एक आउटपुट वैल्यू जनरेट कर रहा है। ओके, तो वो जो आउटपुट वैल्यू जनरेट कर रहा है फॉर सिस्टोलिक प्रेशर, डायस्टोलिक प्रेशर और पल्स रेट को देखते हुए, सो अगर हम इंप्लीमेंट करें इसी इन चीजों को, जैसे आउटपुट यूनिट है क्या कर रही है, बाय इंट्रोड्यूसिंग ए न्यू कैलकुलेशन दैट कन्विंस द पेटेंट ऑफिस कि भाई हम इसके अंदर क्या कर रहे हैं, आउटपुट वैल्यू निकल के आ रही है, जो वैल्यू कैसे निकल के आ रही है वो अगर आप शो कर देते हैं तो पेटेंट ऑफिस उसको पेटेंट क्रिएट फाइल करने में आपकी हेल्प करेगा। तो जहां पे भी आउटपुट डेटा निकल के आ रहा है बाय यूजिंग मैथमेटिकल मैथमेटिकल कैलकुलेशंस का जहां आप यूज कर रहे हैं, देन यू हैव अ चांस दैट यू कैन फाइल अ पेटेंट such type of inventions. So now we have different types of IPR that I have already told. We have patents, trademark, copyright and designs. So now one by one, patents आपको प्रोडक्ट एंड प्रोसेस का दिया जाता है। जैसे आपने कोई इन्वेंशन क्रिएट की, ओके, तो आपने प्रोडक्ट बनाया और प्रोडक्ट का पेटेंट आप कर सकते हैं। राइट्स आपको 20 ईयर्स के लिए मिलते हैं। 20 ईयर्स के बाद आपके जो राइट्स हैं वो पब्लिक डोमेन में आ जाते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं ट्रेडमार्क की। ट्रेडमार्क देखो क्या होता है, एक लोगो है। जब कोई कंपनी स्टार्टअप अपना स्टार्ट करती है तो अपना नाम रजिस्टर करती है, दैट प्रोटेक्ट अंडर ट्रेडमार्क। इंडस्ट्रियल डिजाइन में हम डिजाइन को कवर करते हैं। डिजाइन में आपका कोई भी इंडस्ट्रियल डिजाइन हो सकता है, मैकेनिकल डिजाइन हो सकता है। कॉपीराइट्स में आप कोई भी लिटरेचर, कोई रिसर्च पेपर, अगर अनपब्लिश वर्क है उसको भी प्रोटेक्ट कर सकते हैं, पब्लिश वर्क को भी कॉपीराइट में प्रोटेक्ट कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर एल्गोरिथम अगर आपने लिखा है उसको भी आप सॉफ्टवेयर कैटेगरी में प्रोटेक्ट कर सकते हैं। अगर कोई पेटेंट, अगर आपके पास कोई ऐप आपने डेवलप किया वो भी आप कॉपीराइट फाइल करा सकते हैं। नेक्स्ट आपका ज्योग्राफी इंडिकेशन जिसे हम बोलते हैं जीआई। हर पर्टिकुलर एरिया की स्पेशलिटी प्रोडक्ट होता है, जैसे आगरे का पेटा, कांचीपुरम साड़ी, तो आप उनको जीआई में रजिस्टर करते हैं। नेक्स्ट इज ट्रेड सीक्रेट। ट्रेड सीक्रेट में कोई भी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन, चाहे कोई कोडिंग ही है, आप नहीं चाहते उसको पेटेंट करना, आप चाहते हैं उसको कॉन्फिडेंशियल रखना, सो यू कैन गेट अ कॉपीराइट, यू कैन गेट अ ट्रेड सीक्रेट फॉर सच टाइप ऑफ इन्वेंशंस. So here example I have taken Adiatech is a company, they have patented the technology. अब उन्होंने क्या पेटेंट किया है, if a patient, like suppose हमारे घर में जो हमारे दादा दादी होते हैं हमेशा दवाई लेना भूल जाते हैं, ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, एक स्मार्ट बॉटल बनाई। स्मार्ट बॉटल के अंदर एक सेंसर लगाया। Now this sensor, what this sensor is doing, this patient misses a dose, the bottle reminds them with a on bottle light and with the light and introducing a automated text message on a phone call. तो एक मैसेज चला जाएगा फैमिली मेंबर्स के ऊपर कि भाई हमारे मतलब जिसके भी दवाई खाने का टाइम हो गया आप उनको दवाई दे सकते हैं। ओके, तो इसके अगर हम एक एडियाटेक फार्मास्यूटिकल कंपनी की बात करें तो उनका ये पेटेंटेड टेक्नोलॉजी है। इनका जो डिजाइन है बॉटल का वो भी काफी यूनिक है, क्योंकि इसके अंदर एक लाइट लगाई है इन्होंने, जो कि हर एक जब भी आप उसके अंदर रिमाइंडर डालेंगे तो वो रिमाइंड कराएगी आपको। ड्रग जो मैनुअल है, जब भी आप कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं तो उसका जो आपको लीफलेट मिलता है वो हमने कॉपीराइट में प्रोटेक्ट किया है और नाम जो है वो रजिस्टर्ड हुआ है ट्रेडमार्क के अंदर।
अब बात करते हैं पेटेंट्स की। पेटेंट एक वाइपो का एक मतलब अकॉर्डिंग टू वाइपो एक पेटेंट एक्सक्लूसिव राइट है जो गवर्नमेंट आपको देती है आपकी इन्वेंशंस के लिए। चाहे द वे ऑफ डूइंग समथिंग न्यू, कोई भी आप एक नया प्रोसेस निकाल रहे हैं, कोई भी पुराना मतलब आपने एक प्रॉब्लम का एक सॉल्यूशन ढूंढा, उसको आप पेटेंट कर सकते हैं। ओके, तो बेनिफिट क्या है ओइंग का पेटेंट? पहला बेनिफिट है ओनरशिप। भाई आप इन्वेंटर है, आपने इन्वेंशन जनरेट किया, तो आप इन्वेंटर, आप अपना पेटेंट फाइल किया, आपको 20 राइट्स के लिए राइट्स मिलते हैं, आप इंजॉय कर सकते हैं। दूसरा, अगर आप एक बडिंग एंटरप्रेन्योर है, आप चाहते हैं अपनी इस आइडिया को लेके बिजनेस शुरू करें, तो आप एक स्टार्टअप कंपनी खोल सकते हैं। बीट द कंपटीशन, जो भी आप पेटेंट फाइल करेंगे, कॉम्पिटिटर को आप बता रहे हैं कि आई हैव ऑलरेडी फाइल्ड अ पेटेंट, सो इट इज माय पेटेंट, इट हैज नाउ आई हैव अ लीगल राइट, सो द थर्ड पर्सन कैन नॉट यूज माय पेटेंट विदाउट माय परमिशन। सेकेंड, अर्न द रॉयल्टी। जब भी आप कोई पेटेंटेड इन्वेंशन बनाते हैं, जैसे कीबोर्ड आपने जनरेट किया, या कीबोर्ड किसी ने जिसने भी सबसे पहले इन्वेंट किया, तो कीबोर्ड आजकल हम सारे सिस्टम में यूज कर रहे हैं, ठीक है, लैपटॉप्स में भी कीबोर्ड है, लैपटॉप्स में भी कीबोर्ड है, डेस्कटॉप में भी कीबोर्ड होता था, तो उसकी एक रॉयल्टी, 1% रॉयल्टी उस इन्वेंटर को जाती है जो उसको क्रिएट करता है। तो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के टाइम पे जब हम लाइसेंसिंग करते हैं अपनी इन्वेंशंस को, अपने पेटेंट्स को, देन वी गेट द रॉयल्टी। नेक्स्ट, अवॉइड लिटिगेशन। पेटेंट इसलिए भी फाइल करते हैं ताकि कोई कॉम्पिटिटर अगर कोई इन्वेंशन को यूज कर रहा है तो आप उसे स्टॉप कर सके कि यू कैन नॉट यूज माई दिस इन्वेंशन बिकॉज दैट इन्वेंशन हैज माई ओन राइट। सो पेटेंट करने से आपके पास ये फायदा होता है कि आप लिटिगेशन से बच जाते हैं कि कल को पता चला आपने पेटेंट फाइल नहीं किया, आपने प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च कर दिया, ठीक है, कॉम्पिटिटर ने क्या किया, आपकी टेक्नोलॉजी को यूज किया और उसने वो पेटेंट फाइल किया हुआ था। अब आप चले गए लड़ाई करने की, भाई ये पेटेंट तो मेरा है, आपने कैसे इस पे राइट ले लिया, आप ऐसे प्रोडक्ट बना सकते हैं, तो वो बोलेगा भैया आप पेटेंट दिखाओ, आपने कहाँ फाइल की? तो पेटेंट ऑफिस से जो सबसे पहले पेटेंट ऑफिस में जाएगा, ही गेट्स द राइट। तो आपको लड़ना नहीं है, सबसे पहले आपको क्या करना है, अगर टेक्नोलॉजी आई है तो सबसे पहले यू हैव टू फाइल द पेटेंट फॉर द सेम टेक्नोलॉजी। नाउ पब्लिक इंटरेस्ट के लिए भी लोग पेटेंट फाइल करते हैं, ठीक है। एंड नेक्स्ट वी हैव अ गुड रिटर्न, और इन रिटर्न के लिए हम लोग भी पेटेंट फाइल करते हैं, जैसे मैंने बताया कि आप उसके ऊपर मॉनेटरी गेन और बेनिफिट लेते हैं, दैट इज व्हाई वी आर फाइलिंग द पेटेंट। नाउ व्हाट इज द क्राइटेरिया फॉर पेटेंट? आइडिया तो दे दिया, ठीक है, आजकल आपने देखा होगा बहुत सारे हैकेथॉन इवेंट्स हो रहे हैं, बहुत सारे आइडिया कॉम्पिटिशन्स हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं बच्चे, कहीं ना कहीं फैकल्टीज अपने आइडियाज प्रेजेंट करते हैं। तो वो जो आइडियाज हैं, तो आइडियाज को सबसे पहले हमें क्या देखो, अगर आपका आइडिया नॉवल नहीं होगा तो पेटेंट ऑफिस उसको पेटेंट नहीं ग्रांट करेगा। तो पेटेंट ऑफिस का क्राइटेरिया है कि जो भी पेटेंट आप उनके पास फाइल कर रहे हैं तो वो नॉवल होना चाहिए, पहला कंडीशन। सेकंड कंडीशन, इन्वेंटिवनेस। इन्वेंटिवनेस का मतलब है कि जो भी आइडिया आप मेरे पास लेके आए, आपने बोला कि मैम हमारे पास ये इन्वेंशन है, मैं इसको पेटेंट फाइल करना चाहता हूँ, या वो आईओटी है, या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, या मशीन लर्निंग। आप देखो कहीं ना कहीं सब जगह कैलकुलेशंस का यूज हो रहा है, सब जगह एल्गोरिथम्स का यूज हो रहा है, ठीक है, कैसे वो इंप्लीमेंट कर रहा है। तो अगर आप ये प्रूफ करते हैं कि जो टेक्निकल एडवांसमेंट है हमारे इन्वेंशन की वो बेटर है कंपेयर टू दी ऑलरेडी प्रायर आर्ट, तो पेटेंट ऑफिस आपको पेटेंट ग्रांट करेगा। थर्ड, इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन। जब हम ये प्रूफ करते हैं कि हमारी इन्वेंशन बना सकते हैं, कमर्शियल वैल्यू है उसकी, कमर्शियल वैल्यूबल है मार्केट के लिए, तो ये तीनों क्राइटेरिया के बेसिस पे, नोवेल्टी, इन्वेंटिव, इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन के बेसिस पे पेटेंट ऑफिस आपको पेटेंट ग्रांट कर देता है। नेक्स्ट, स्ट्रक्चर ऑफ स्पेसिफिकेशन, जो कि टॉपिक है आपके रिसर्च थीम का, कि भाई जो पेपर अभी तक जो भी था रिसर्च में, कि भाई रिसर्च कैसे लिखते हैं हम लोग, ओके, और उसका लिखने का तरीका क्या होता है, ठीक है। अब बात करते हैं ड्राफ्टिंग। ड्राफ्टिंग इट्स आर्ट ऑफ लाइक यू हैव टू हाउ टू राइट द पेटेंट स्पेसिफिकेशन, ओके। सो द स्ट्रक्चर ऑफ स्पेसिफिकेशन इज द फर्स्ट, यू हैव टू आइडेंटिफाई द टाइटल ऑफ द इन्वेंशन। जो टाइटल होना चाहिए आपका इतना शॉर्ट होना चाहिए कि कोई भी टाइटल देख के आपकी इन्वेंशन को समझ ले, ओके। सो टाइटल अगर हम बहुत बड़े बड़े टाइटल रखेंगे तो पेटेंट ऑफिस उसको डिनाई कर देगा कि ये क्या टाइटल आपने बनाया। तो टाइटल हमेशा देखो पेटेंट ऑफिस के क्राइटेरिया के हिसाब से जो टाइटल है हमारा वो आपका 15 वर्ड से ज्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए। तो हमारी पेटेंट ऑफिस में लिमिट होती है, रिसर्च पेपर का तो मुझे नहीं आइडिया, बट हमारे पेटेंट में ये लिमिट होती है कि आपका जो टाइटल है वो 15 वर्ड से ज्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने एक आईओटी बेस्ड हेल्थ मॉनिटरिंग डिवाइस बनाई है, तो आईओटी बेस्ड हेल्थ मॉनिटरिंग डिवाइस पढ़ने से, टाइटल पढ़ने से आपको पता लग रहा है यस कि मैम ने एक पेटेंट किसके ऊपर फाइल किया है, आईओटी बेस्ड हेल्थ मॉनिटरिंग डिवाइस पे, ठीक है। फॉर एग्जांपल, जैसे एग्जांपल लेते हैं दूसरा, वायरलेस इन्फेंट हेल्थ मॉनिटर। तो टाइटल पढ़ने से पता चल रहा है कि एक वायरलेस इन्फेंट हेल्थ मॉनिटर डिवाइस बनाई है जिसका हमने एक पेटेंट फाइल किया है, ओके।
मैं आपको ड्राफ्टिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से समझाती हूँ। एक मिनट रुको, मैं शेयर स्क्रीन स्टॉप करके दोबारा एक बार करती हूँ। स्टॉप शेयरिंग, दोबारा मैं शेयर स्क्रीन कर रही हूँ। मैं एक एग्जांपल, लाइव एग्जांपल से आपको समझाती हूँ पेटेंट्स के। ठीक है, ये देखिए, ये एक पेटेंट है, ये पूरा एक ड्राफ्टिंग प्रोसेस है जिसे हम बोलते हैं पेटेंट ड्राफ्टिंग। पेटेंट ड्राफ्टिंग के लिए आपको क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है वो आपको यहाँ मैं समझाती हूँ। देखो, सबसे पहले टाइटल मैंने बताया, वायरलेस इन्फेंट हेल्थ मॉनिटर। टाइटल आपका 15 वर्ड से ज्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए, 15 वर्ड्स के अंदर अंदर होना चाहिए। नेक्स्ट, उसके बाद हम एक लिखते हैं एब्स्ट्रैक्ट। जब भी पेटेंट, जैसे पेपर्स में भी आप एब्स्ट्रैक्ट लिखते हो, वैसे ही हम अपने पेटेंट्स में भी एक एब्स्ट्रैक्ट लिखते हैं। एब्स्ट्रैक्ट जो होता है प्रॉब्लम का सोल्यूशन बताता है। ठीक है, 150 वर्ड की लिमिट होती है हमारे पेटेंट ऑफिस में, 150 वर्ड से ज्यादा बड़ा एब्स्ट्रैक्ट नहीं लिखेंगे। एब्स्ट्रैक्ट पढ़ने से आप लेमैन, एक लेमैन पर्सन समझ जाए कि इन्वेंशन क्या है। ठीक है, तो अब जैसे एब्स्ट्रैक्ट देखो, आप मैंने यहाँ पे लिखा है, सिस्टम फॉर वायरलेसली मॉनिटर द हेल्थ ऑफ एन इन्फेंट कंप्राइजिंग ए सेंसिंग मॉड्यूल। आयुषी, लेक्चर के बाद बात करना, ठीक है। ए सिस्टम फॉर वायरलेसली मॉनिटरिंग द हेल्थ ऑफ एन इन्फेंट, एक है हमने सिस्टम डेवलप किया है, वो वायरलेसली एक मॉनिटर कर रहा है इन्फेंट की हेल्थ को। कंप्राइजिंग, अब आपको याद रखना है, जब हम पेटेंट लिखते हैं तो कुछ वर्ड हम यूज करते हैं, जैसे कंप्राइजिंग, कंसिस्टिंग ऑफ और इंक्लूडिंग। तो जब भी आप क्लेम भी लिखेंगे, तो अगर आपके कंपोनेंट जो भी इंक्लूडेड है उस डिवाइस के अंदर, तो यू ऑलवेज यूज कंप्राइजिंग। ओके, सो कंप्राइजिंग ए सेंसिंग मॉड्यूल, एक सेंसिंग मॉड्यूल है, रिमूवेबली डिस्पोज्ड विद इन अ वेयरेबल आर्टिकल। At least a portion of the sensing module can be contact with the infant food. अब वो sensing module कहाँ कनेक्ट है, वो कॉन्टैक्ट विद इन्फेंट फूड के साथ कॉन्टैक्ट में है। आप देखो फिगर में, देखो आप, ये फिगर मैं आपको दिखा रही हूँ। फिगर में आप ये देखो, ये एक डिवाइस है, ठीक है, जो बेबी के फूड के साथ इन्होंने अटैच किया है। दूसरा, जब भी आप पेटेंट के अंदर डायग्राम्स प्रोवाइड करते हैं एक अटॉर्नी को, तो आप प्लीज ध्यान रखें कि हमारे पेटेंट के केस में हम नंबरिंग करते हैं। देखो 240, 210, 230, तो जितने भी कंपोनेंट रिप्रेजेंट कर रहे हैं ड्राइंग में, यू कैन नॉट डू राइट द टेक्स्ट ऑन दैट apparatus और ऑन द डिवाइस, यू ऑलवेज राइट नंबर ऑन दैट डिवाइस, लाइक 200 and लाइक हम लोग 100 से शुरू करते हैं, 100, 101, 102, 103। ओके, तो ये नंबरिंग आप डिनोट करेंगे, बस फिगर में नंबरिंग बताएंगे कि जो भी कंपोनेंट आप रिप्रेजेंट करना चाहते हैं वो उसका 2010 है, 2040 से क्या मतलब है। आप देखो 2010 जो है वो सेंसिंग मॉड्यूल है, 2040 जो है वो पाउच है, और 2030 जो है आउटर स्ट्रैप है। तो तीन कंपोनेंट को तीन नंबर से हमने डिनोट किया। ओके, नाउ द फर्दर, अब आपको पूरी डिवाइस का मैकेनिज्म समझाना है कि एक वेरिएबल डिवाइस जो हम बात कर रहे हैं, वायरलेसली मॉनिटरिंग जो हेल्थ कर रही है बेबी की, उसके अंदर एक प्रोसेसर लगा हुआ है, क्या कर रहा है, जो कि कन्फिग कर रहा है, रिसीव कर रहा है प्रोसेस ऑफ हेल्थ, रीडिंग रिसीव बाय द सेंडिंग मॉड्यूल। A wireless transmitter लगा है that can be communicated with the processing unit. Wireless transmitter can be configured to transmit the processing of health reading to a receiving station. तो ये सारा मैकेनिज्म आप अपने एब्स्ट्रैक्ट में बताएंगे, बस लिमिट आपको याद रखनी है 150 लिमिट। ओके, सेकंड हम आते हैं नेक्स्ट, जब हम एब्स्ट्रैक्ट लिख देंगे, और एब्स्ट्रैक्ट आपका हमेशा सेपरेट पेज पे जाएगा, ये आपको पॉइंट ध्यान रखना है। सो इस सिंगल पेज पर आप एब्स्ट्रैक्ट लिखेंगे जिसके अंदर एक टाइटल देंगे और 150 वर्ड्स के अंदर एब्स्ट्रैक्ट कंपाइल्ड होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं बैकग्राउंड ऑफ द इन्वेंशन। जब भी हम अपना पेटेंट लिखते हैं तो आपने उसमें देखा होगा बैकग्राउंड और फील्ड ऑफ इन्वेंशन। सबसे पहले हम लिखेंगे फील्ड ऑफ इन्वेंशन। अब हमारी फील्ड क्या है, हम क्या बना रहे हैं, हम एक इन्फेंट मॉनिटरिंग इक्विपमेंट बना रहे हैं। आप उसको इक्विपमेंट भी लिख सकते हैं, आप उसको डिवाइस भी लिख सकते हैं, आप उसको एपरेटस भी लिख सकते हैं, इट्स अप टू यू। ठीक है, अब आप इसको थोड़ा ब्रॉड रखना चाहते हैं कि आप ये सोचें कि कल को नहीं, मैं इन्फेंट के लिए नहीं बना रहा, मैं तो एक ह्यूमन बीइंग के लिए बना रहा हूँ। अगर वो कोई भी परेशान है, कुछ भी है, अगर मॉनिटरिंग करनी है उसके, सपोज एक पेशेंट है, ठीक है, हॉस्पिटल में एक पेशेंट बैठा है और उसको आपको मॉनिटर करना है, ठीक है, तो उसके लिए आजकल आपने देखा कि वहां पे तो एक मशीन्स लगी होती है, ठीक है, वेंटिलेटेड मशीन्स लगी हुई जहाँ पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। बट अगर हमने उसके हाथ में एक बैंड बांध दिया जिससे आपको उसका पूरा हेल्थ मॉनिटर कर ले, तो वैसे ही हम अगर इसको स्कोप इसका बढ़ाना चाहते हैं, तो आप इसको इन्फेंट ना लिख के आप ये बोल सकते हैं एक मॉनिटरिंग इक्विपमेंट मैंने बनाया है। ओके, एक स्मार्ट वायरलेस मॉनिटरिंग इक्विपमेंट मैंने बनाया जिसको मैं पेटेंट करना चाहता हूँ। नेक्स्ट,
उसके बाद है बैकग्राउंड ऑफ द रेलेवेंट आर्ट। बैकग्राउंड ऑफ द रेलेवेंट आर्ट का मतलब है कि जो भी इन्वेंशन है, ठीक है, पहले आप उसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन बताएंगे। इंट्रोडक्शन में आप बताएंगे कि भैया अभी तक कैसी इन्वेंशन अवेलेबल है मार्केट के अंदर, उनके क्या ड्रॉबैक है, और आपने नीड ऑफ द आवर, आपने वो इन्वेंशन क्यों जनरेट की। ओके, तो एवरी 1000 ऑफ बेबीज डाई फ्रॉम द सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम। ठीक है, कई बार आपको पता भी नहीं होता कि बच्चे में क्या प्रॉब्लम हो गई, और कई बच्चों की डेथ होती है ड्यू टू दिस। ठीक है, तो इस चीज की, इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देने के लिए हमने क्या बनाया, एक उसकी हेल्थ को मॉनिटर करने के लिए हमने एक प्रोडक्ट बनाया जो कि हम रेगुलर अपने बच्चे को वॉच कर सके और मॉनिटर कर सके। ठीक है, तो आप पहले ये बताएंगे कि जो भी इन्वेंशन ऑलरेडी प्रायर आर्ट में है। अच्छा, तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बताती हूँ, जब आप इन्वेंशन किसी अटॉर्नी के पास लेके जाते हैं तो सीधा ये नहीं कि अटॉर्नी ने आपका इन्वेंशन सुना और पेटेंट फाइल कर दिया। नो, व्हाट वी डू, जैसे सपोज मैं भी एक अटॉर्नी हूँ, आप मेरे पास आए कि मैम मुझे एक पेटेंट फाइल करना है, तो सबसे पहले मैं क्या करूंगी, मैं आपका पेटेंट सर्च करूंगी। तो वी हैव गूगल पेटेंट। आप ये देखिए, स्क्रीन शेयर हो रही है ना सर मेरी, तरुण सर? Yes, madam, it is visible. ओके, अभी कौन सी स्क्रीन, क्या दिख रहा है जरा स्क्रीन पे? Google patents. हाँ देखिए, ये गूगल पेटेंट है आप लोगों के लिए अंडरस्टैंडिंग के लिए, कि जब भी आपको इन्वेंशन फाइल करना चाहते हैं या आपके दिमाग में कोई आइडियाज चल रहे हैं, तो आप क्या करें, आप गूगल पेटेंट पे जाएं और वहां पे अपना कीवर्ड टाइप करें। ओके, जैसे सपोज हमने एक डिवाइस बनाई है, इन्फेंट मॉनिटरिंग डिवाइस। ठीक है, तो मेरा पेटेंट है इन्फेंट मॉनिटरिंग डिवाइस का। अब ये देखो, जब मैंने टाइटल डाला, ठीक है, इन्फेंट मॉनिटरिंग डिवाइस, तो आई गॉट अ लॉट ऑफ पेटेंट्स ओवर देयर। ओके, तो अब आपको कैसे पता चलेगा कि मेरा पेटेंट कैसे मैच कर रहा है? तो व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू लगा टाइटल से आप देखो कि आपका पेटेंट कितना मैच कर रहा है। सपोज ये वेरिएबल इन्फेंट मॉनिटरिंग डिवाइस भी मैच कर रहा है, इन्फेंट मॉनिटरिंग डिवाइस भी मैच कर रहा है। तो आप ये पेटेंट खोलिए, जब when you open that patent you go to the abstract, एक बार abstract पढ़ने के बाद इसकी claims एक बार चेक कीजिए। now what is a claim? देखिए, जब आप रिसर्च पेपर लिखते हैं, so you don't have to include any claims in the research paper, but when we are writing a patent we have to include the claims in the patent. What are the claims? Claims are the legal invention, legal part of your invention. For example, एक तरुण सर ने एक इन्वेंशन डेवलप की और एक सेकंड पर्सन ने भी इन्वेंशन डेवलप की, एंड तरुण सर को नहीं पता कि जो सेकंड पर्सन जो पेटेंट लेके आए हैं उनका भी सेम इन्वेंशन है, एंड बोथ आर फ्रॉम द सेम कॉलेज। ठीक है, कल को एंड आई एम अटॉर्नी इन पैनल्ड इन योर कॉलेज एज अ फॉर अ पेटेंट कंसल्टेंसी। अब तरुण सर मेरे पास इन्वेंशन लेके आया और एक सेकंड पर्सन भी मेरे पास इन्वेंशन लेके आया, और मैंने चेक किया कि दोनों का इन्वेंशन सेम है, दोनों ही वेरिएबल इन्फेंट डिवाइस बना रहे हैं और दोनों का काम बिल्कुल इक्वल है। नाउ अगर दोनों ने पेटेंट फाइल किया और तरुण सर को पता चला कि मिस्टर एक्स ने जो पेटेंट फाइल किया है, या अगर एक्स ने पहले पेटेंट फाइल किया, तरुण सर को बाद में पता चला, तो तरुण सर के पास वो राइट्स है कि आप उसके पेटेंट को प्री ग्रांट ऑपोजिशन के लिए फाइल कर सकते हैं, और आप उनसे बोलेंगे कि भाई जो आपने पेटेंट फाइल किया वो बिल्कुल एग्जैक्टली मेरा इन्वेंशन है। तो पेटेंट ऑफिस किसके बेसिस पे डिफेंड करता है कि वो इन्वेंशन किसका है? क्लेम्स के बेसिस पे। तो ये जो हमारे क्लेम्स होते हैं, जो क्लेम यहाँ पे मैं बात कर रही हूँ, व्हाट इज क्लेम्ड? क्लेम्ड है कि भाई जब गाड़ी ठुक जाती है, गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है, तो हम क्लेम मांगते हैं कि भाई हमारा इतना पार्ट डैमेज हुआ है, ये हमें क्लेम चाहिए, इतना हमें रिकवरी चाहिए, इतना पैसा चाहिए। वैसे ही पेटेंट ऑफिस के अंदर अगर आप अपने प्रोडक्ट को मार्केट में लॉन्च कर चुके हैं और किसी ने आपकी सेम इन्वेंशन को चोरी किया और वही प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च कर रहा है, तो आप क्या करेंगे? आप रिकवरी के लिए क्लेम करेंगे, आप डैमेजेस के लिए क्लेम करेंगे कि मिस्टर एक्स ने जो पेटेंट फाइल किया जिसकी वजह से उसको मॉनेटरी गेन हो रहा है, वो एक्चुअली में इन्वेंशन मेरा है। तब तो अटॉर्नी के बाद जब ये इन्वेंशन लेके जाएंगे, जब आप मेरे पास आएंगे कि पूजा मैम आप ये चेक कीजिए कि ये जो पेटेंट फाइल हुआ है ये राइट मेरे हैं, ये क्लेम मेरे हैं, इन्होंने कैसे इस पे फाइल किया, तो उसके लिए फिर आप क्या करेंगे? आप उसकी क्लेम्स को चेक करेंगे। जब हम क्लेम करते हैं तो यहाँ पे हम जो क्लेम करें, डिवाइस, ए डिवाइस comprising a plurality of sensors wherein the plurality of sensors gathered measurement data associated with the activity of an infant. अब आप क्या करेंगे? जो जो कंपोनेंट आपके डिवाइस के साथ एसोसिएटेड है वो सारे क्लेम्स हम लोग मैप करेंगे आपके कॉम्पिटिटर के साथ, जो पेटेंट ऑफिस में जिसने पहले पेटेंट फाइल किया है। तो ये से सारे पॉइंट्स कि अगर उसके अंदर भी सेंसर वो यूज कर रहा है, ठीक है, एक ट्रांसमिशन यूज कर रहा है, और ये आपका मतलब केसिंग है, लेग्स के साथ ही मेजर कर रहा है,
तो जब हम मैपिंग करेंगे उस पेटेंट की, अगर वो सब चीजें सेम निकली तो पेटेंट ऑफिस के पास वो राइट होते हैं कि आप उस सेकंड पर्सन को, कंप्यूटर को बोलेंगे भाई ये देखो चीटिंग करी है आपने, क्योंकि आपके क्लेम्स इनके क्लेम के साथ मैच कर रहे हैं, वही काम आप कर रहे हैं जो ये कर रहे हैं, या तो आप इनका नाम इंट्रोड्यूस कीजिए या फिर मैं आपका पेटेंट कैंसिल कर रहा हूँ। ओके, तो क्लेम जो होते हैं दे आर द वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द इन्वेंशन। तो जब भी आप ड्राफ्ट करवाएं अपने अटॉर्नी से तो क्लेम्स प्रॉपर चेक करें कि जो क्लेम आप करना चाहते हैं उसने वो सारे पॉइंट इसको अंदर इंक्लूड किए हैं कि नहीं। अब जब हम क्लेम करते हैं तो वी हैव इंडिपेंडेंट क्लेम एंड डिपेंडेंट क्लेम। आप नंबर 1 देखिए, नंबर 1 जो क्लेम है दैट इज ब्रॉड क्लेम। ओके, ये देखिए ये पूरा ब्रॉड क्लेम है, और नंबर 2 से जो शुरू है वो सारे नैरो डाउन है। नैरो डाउन मतलब 2 लाइंस में एक्सप्लेन है। What is independent and dependent claims? So this is called independent claim. Independent claim का मतलब होता है कि सारी इन्वेंशन आपकी इस इन्वेंशन के अंदर कवर हो रही है। फर्स्ट क्लेम के अंदर इंडिपेंडेंट क्लेम होता है जो कि आपकी मेथड डिवाइस के साथ जो कि नॉवल होती है आपकी इन्वेंशन, उन पॉइंट्स को कवर करता है। ठीक है, तो इंडिपेंडेंट क्लेम के अंदर मैंने एक डिवाइस क्लेम की है जिसके अंदर एक सेंसर है, जिसके अंदर एक ट्रांसमिशन है, जिसके अंदर एक केसिंग है, वेरिएबल केसिंग है, जिसके अंदर सेंसर्स लगे हैं और वो आपस में वर्क कर रहे हैं। ओके, नाउ सेकंड इज कॉल्ड डिपेंडेंट क्लेम। डिपेंडेंट क्लेम का मतलब है कि सेकंड क्लेम जो है फर्स्ट क्लेम के ऊपर डिपेंडेंट है। डिपेंडेंट का मतलब है कि पहला जो क्लेम हमने बनाया है उसके अंदर हम ये क्लेम कर रहे हैं जो डिवाइस, तो हम लिखेंगे द डिवाइस ऑफ क्लेम 1। क्लेम 1 का जो डिवाइस हम क्लेम कर रहे हैं, वेयर इन द प्लूरिटी ऑफ सेंसर्स इंक्लूड द फर्स्ट सेंसर टू डिटेक्ट द मोशन ऑफ एन इन्फेंट। अब हम बात कर रहे हैं प्लूरिटी ऑफ सेंसर्स की, तो आपको बताना होगा उस प्लूरिटी ऑफ सेंसर, जो मल्टीपल सेंसर्स की मैं बात कर रही हूँ, उसमें से एक जो सेंसर है, जो फर्स्ट सेंसर है, वो क्या कर रहा है, डिटेक्ट कर रहा है मोशन ऑफ द इन्फेंट। ओके, नेक्स्ट सेकंड, जो फिर बाद में आप ये बताएंगे जो फर्स्ट सेंसर सेकंड क्लेम में आप बताएंगे थर्ड इंडिपेंडेंट क्लेम में कि भाई जो फर्स्ट सेंसर है वो क्या है, एक ट्राई एक्सियल एक्सीलरोमीटर है जो मैंने यूज किया है। थर्ड फिर आप बता रहे हैं कि जो प्लूरिटी ऑफ सेंसर्स है उसके अंदर सेकंड सेंसर क्या कर रहा है, टेम्परेचर ऑफ द इन्फेंट डिटेक्ट कर रहा है। ठीक है, और अब थर्ड सेंसर क्या कर रहा है, वो स्किन के रिस्पॉन्स को डिटेक्ट कर रहा है। तो अब समझ में आया कि जो प्लूरिटी ऑफ सेंसर मैंने इंडिपेंडेंट क्लेम में बताया था उसी को आपको नीचे तोड़ना है, उसी को नीचे खोलना है। मतलब एक तरह से ब्रॉड क्लेम में आप चीजें बताएंगे कि मैंने ये यूज किया, बट थर्ड नीचे डिपेंडेंट क्लेम में आप उनको बताएंगे कि फर्स्ट जो सेंसर है वो क्या काम कर रहा है, सेकंड सेंसर क्या काम कर रहा है, थर्ड सेंसर क्या काम कर रहा है, वो कैसे आपस में आप कनेक्टेड है। समझ आया, गॉट इट? नेक्स्ट, तो पेटेंट ऑफिस में ये कोई लिमिट, देखो हमारे इंडियन पेटेंट ऑफिस में एक लिमिट है कि हम 10 क्लेम बनाते हैं। जैसे यहाँ पे देखो 10 क्लेम बने हुए हैं, 10 क्लेम तक हमारे पेटेंट ऑफिस में कोई चार्जेस नहीं है। जैसे हम लोग 15 to 20,000 चार्जेस करते हैं एक पेटेंट फाइलिंग में, तो उसमें 10 क्लेम तक आपके अलाउड है। पर जैसे ही आपने 10 क्लेम से ज्यादा अलाउ किए, मतलब आपने बोला कि पूजा मैम मुझे कुछ और भी कवर करना है। अब देखो यूएस में क्या होता है, यूएस में कोई लिमिटेशंस नहीं होती, यूएस में 20 क्लेम्स तक भी अलाउड है। ठीक है, तो वहां पे क्या हुआ है, एक तो इसने डिवाइस क्लेम किया है और दूसरा इसने मेथड क्लेम किया है। यहाँ पे आप देखो 17 पे मेथड क्लेम किया है। मेथड में वो बता रहा है कि मैं कैसे परफॉर्म करूंगा अपनी डिवाइस को, कैसे वर्क करेगी, तो ये मैं मेथड भी क्लेम कर रहा हूँ। तो हमारे इस पेटेंट में 2 इंडिपेंडेंट क्लेम है और सारे हमारे डिपेंडेंट क्लेम है। तो 2 इंडिपेंडेंट क्लेम, क्योंकि पेटेंट जो होता है या तो प्रोडक्ट का होता है या प्रोसेस का होता है, तो यहाँ पे प्रोडक्ट का क्लेम डिवाइस भी क्लेम किया और इन्होंने प्रोसेस भी क्लेम किया है। तो प्रोसेस को क्लेम करने के लिए मेथड के स्टेप्स आप बताएंगे कि मेथड कंप्राइजिंग ए डिटेक्टिंग एक्टिविटी ऑफ इन्फेंट्स of a variable monitoring device wherein the activity include one or more motion, temperature, position or sensor. Determining the position of an infant including whether the infant is resting, prone or supine. Okay, तो ये सारा इंफॉर्मेशन आप मेथड क्लेम में इंक्लूड कर देंगे उसके स्टेप बाय स्टेप। ओके, अब इन्होंने थर्ड देखो, इन्होंने एक और इंडिपेंडेंट क्लेम किया है 20 के अंदर। पहले एक डिवाइस हमने क्लेम की, फिर हमने एक उसका प्रोसेस क्लेम किया, फिर हमने एक और डिवाइस क्लेम की। अब उन्होंने क्या किया है, प्लूरिटी ऑफ सेंसर मींस द प्लूरिटी ऑफ सेंसर मीन गैदर मेजरमेंट डेटा एसोसिएटेड विद द एक्टिविटी ऑफ द इन्फेंट। फिर ट्रांसमिशन इंटरफेस मींस कॉन्फ़िगर टू ट्रांसमिट द मेजरमेंट डेटा डिटेक्टेड विद द प्लूरिटी ऑफ सेंसर। वो बता रहे हैं कि जो प्लूरिटी ऑफ सेंसर हमने यूज किया वो क्या कर रहे हैं, डेटा गैदर कर रहे हैं, मेजर कर रहे हैं, उसके हिसाब से वो वर्क कर रहा है। तो इन्होंने 2 डिवाइस और एक मेथड क्लेम को क्लेम किया। तो ये थी कहानी क्लेम्स की, जो कि आप रिसर्च पेपर के अंदर हम नहीं इंक्लूड करते, बट हम जब पेटेंट्स लिखते हैं तो वी इंक्लूड दिस क्लेम्स। नाउ बैक टू द बैकग्राउंड पार्ट। सो बैकग्राउंड में मैंने आपको पहले बताया कि फील्ड ऑफ इन्वेंशन लिखते हैं, फील्ड ऑफ इन्वेंशन के बाद वी राइट द इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में हम लोग बताएंगे कि हमारा जो पेटेंट था
ठीक है, बैकग्राउंड में हम लोग बताते हैं कि हमारा जो पेटेंट है उसकी क्या ड्रॉबैक है, और अब देयर आर नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स इन द प्रायर आर्ट सो दैट कैन बी एड्रेस्ड, एंड उसको ओवरकम करने के लिए हमने एक डिवाइस बनाई है जो कि बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव है, इकोनॉमिक है और नीड ऑफ द आवर है। ओके, फिर हम बात करते हैं ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ द समरी, ब्रीफ समरी ऑफ द इन्वेंशन। उसके बाद आप समरी लिखते हैं, समरी के अंदर आपने अपनी इन्वेंशन को एम्बॉडीमेंट्स की फॉर्म में लिखते हैं। embodiments। सो डिवाइस के अंदर जो भी हमने सेंसेस लगाए हैं और जो भी वो काम कर रहा है उन सबको आप समरी के अंदर एम्बॉडीमेंट्स की फॉर्म में लिखते हो। तो प्रिंसिपल एम्बॉडीमेंट, द प्रिंसिपल इन्वेंशन हमारी क्या है कि एक apparatus, एक डिवाइस को क्लेम कर रहे हैं जो वायरलेसली मॉनिटर कर रहा है हेल्थ ऑफ द बेबी को, और इन पर्टिकुलर एटलीस्ट वन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द प्रेजेंट इन्वेंशन मॉनिटर ए चाइल्ड ब्लड ऑक्सीजन लेवल। और उनमें से एक जो प्रॉपर्टी है, एक जो इन्वेंशन है वो क्या कर रहा है, ब्लड ऑक्सीजन लेवल को डिटेक्ट कर रहा है और इंडिकेट कर रहा है अलर्ट मैसेज व्हेन एब्नॉर्मल ट्रेंड इज आइडेंटिफाइड। अगर आपको लग रहा है कि आपके बच्चे की ऑक्सीजन कम हो रही है या कोई प्रॉब्लम हो रही है, तुरंत आपके केयर गिवर्स को, फैमिली मेंबर्स को एक मैसेज प्रोवाइड कर रहा है वो डिवाइस। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट आप उसके एडवांटेजेस, फीचर्स बताएंगे समरी में, फिर उसके बाद आप उस इन्वेंशन को फर्दर डिस्क्राइब करेंगे एम्बॉडीमेंट्स की फॉर्म में। तो ये पूरा इन्होंने जो समरी है इन्वेंशन की वो यहाँ पे इन्होंने प्रॉपर डिस्क्राइब की है कि सिस्टम के अंदर क्या है, सिस्टम के अंदर तो the system can comprise a sensing module that has different sensors which include the processing unit। तो ये पूरा कॉन्फ़िगरेशन आप समरी के अंदर डिस्क्राइब करेंगे। अब बात करते हैं समरी के बाद ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ ड्राइंग्स की। तो ड्राइंग जितनी भी आप प्रोवाइड कर रहे हैं, फिगर 1, फिगर 2, फिगर 3, वो सारा आपको उसके अंदर इलस्ट्रेट करना है। आपका लिखने का तरीका होगा, फिगर 1 इलस्ट्रेट ए स्कीमेटिक डायग्राम ऑफ ए सिस्टम फॉर मॉनिटरिंग द हेल्थ ऑफ एन इन्फेंट। सिस्टम फिगर 2A क्या कर रहा है तो वो भी आप उसके अंदर डिस्क्राइब करेंगे। तो जितने भी व्यूज है आपके फिगर्स के वो सारे आप ऐसे डिस्क्रिप्शन ऑफ द ड्राइंग के अंदर बताएंगे। नेक्स्ट आपका है ड्राइंग्स के बाद फिगर 1, 2, फिगर 3 के बाद आता है डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्रेफर्ड एम्बॉडीमेंट्स। अब जो हम समरी के फॉर्म में, समरी में हमने इन्वेंशन डिस्क्राइब करी है उसका डिटेल मैकेनिज्म, ठीक है, डिटेल मैकेनिज्म मतलब जो भी फिगर्स मैं डिस्क्राइब करी हूँ उस फिगर्स को भी आप प्रॉपर्ली डिस्क्राइब करेंगे पेटेंट के अंदर। फॉर एग्जाम्पल Figure 1 illustrate a schematic diagram of a system for monitoring the health of an infant in the accordance with the implementation of present invention. So in particular figure 1, अब particular figure 1 क्या डिपिक्ट कर रहा है, एक सेंसिंग मॉड्यूल जिसके अंदर एक एलिमेंट शो कर रहा है 100 नंबर से, that is a communication with the receiving station 110। अब आप ये देखो जो मैं आपको बता रही थी कि आप जब भी कोई फिगर रिप्रेजेंट करेंगे तो उसके अंदर फिगर 1, फिगर 2, फिगर 3 करेंगे। कंप्यूटर रिलेटेड इन्वेंशन में आपके फ्लो चार्ट अलाउड होते हैं। आप देखो यहाँ पे जैसे नॉर्मल रीडिंग्स होती है तो मूवमेंट डिटेक्ट करेंगे, मूवमेंट डिटेक्ट करेंगे तो अलार्म डिस्प्ले होगा, एंड नॉर्मल रीडिंग से नोटिफिकेशन अलार्म जाएगा। तो ये आप फ्लो चार्ट भी प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि फ्लो चार्ट में टेक्स्ट अलाउड है। बट अगर कोई नॉर्मल इन्वेंशन है जैसे बायो की है, मैकेनिकल की है, इलेक्ट्रिकल की है, तो वहां पे अगर फ्लो चार्ट नहीं है पर इन्वेंशन के अंदर जो फिगर आप प्रोवाइड करेंगे वहां पे आप टेक्स्ट नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि ओनली फ्लो चार्ट्स में आप टेक्स्ट अलाउड है। नेक्स्ट अब क्या है, जितनी भी फिगर्स हैं आप डिटेल डिस्क्रिप्शन के अंदर डिस्क्राइब करेंगे, फिगर 1, फिगर 2, फिगर 3, ठीक है। उसके बाद पूरा डिस्क्रिप्शन आपका एंड अप हो जाएगा फिगर्स के साथ। ये देखो जो मॉड्यूल मैंने आपको बताया जैसे 240 एक पाउच है, जैसे मैं आपको बता रही थी कि जो फिगर्स में नंबरिंग आप यूज करेंगे उसमें जो भी कंपोनेंट यूज करेंगे उसका नंबरिंग जब भी आप डिस्क्रिप्शन में भी उसको डिस्क्राइब कर रहे हैं, अगर सेंसिंग मॉड्यूल लगा है तो सेंसिंग मॉड्यूल 2010। तो आपको एक चीज ये भी याद रखनी है कि जो भी कंपोनेंट आप बता रहे हैं इन्वेंशन के अंदर 210 जो नंबर आपने डिनोट किया है, अगर वो सेंसिंग मॉड्यूल है तो पूरी फिगर, सब फिगर्स में 210 ही नंबर सेंसिंग मॉड्यूल रिप्रेजेंट करेगा। ऐसा नहीं है कि फिगर 1 में 2010 सेंसिंग मॉड्यूल और फिगर 2 के अंदर 2010 कोई और चीज को डिनोट कर रहा है। नंबरिंग आपकी मतलब सेम रहनी चाहिए। अगर 200 शॉक को कह रहा है तो 200 मीन शॉक ही, हर फिगर में 200 शॉक के बारे में ही हम डिस्क्राइब कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल जैसे शॉक 200 को रिप्रेजेंट कर रहा है और इसका मतलब 200 जो है कॉन्फ़िगर्ड है सेंसिंग मॉड्यूल 2010 के साथ टू रिमूव फ्रॉम द शॉक, ठीक है। जहां पे भी जो वर्ड आप देखेंगे, जहां पे जो कंपोनेंट आप रिप्रेजेंट करेंगे उसके ब्रैकेट में आप नंबर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द ड्राफ्टिंग पार्ट।
जिसके अंदर हम पेटेंट टाइटल देते हैं। आई एम कमिंग बैक टू माई स्लाइड्स। टाइटल देते हैं टू आइडेंटिफाई द इन्वेंशन। एक स्टेटमेंट होती है फील्ड ऑफ इन्वेंशन, जिसमें हम बता रहे हैं कि हमारी जो इन्वेंशन है वो एक मॉनिटरिंग डिवाइस है। ओके, और उसका थोड़ा सा आप एक्सपेक्ट बताएंगे, थोड़ा सा आप उसके एप्लीकेशन बता सकते हैं। फिर एक्सप्लेनेशन टू द बैकग्राउंड। बैकग्राउंड में मैंने आपको दिखाया कि बैकग्राउंड में स्टेट ऑफ द आर्ट मतलब प्रॉब्लम क्या थी, प्रायर आर्ट जो हम सर्च कर रहे हैं गूगल पेटेंट पे, उनके पेटेंट्स हम उसके अंदर डालते हैं कि प्रॉब्लम क्या थी, उसका क्या आपने सॉल्यूशन निकाला। स्टेटमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्टिव, टेक्निकल प्रॉब्लम और उसका क्या सॉल्यूशन हम निकाल रहे हैं, वो हम अपने समरी जब हम लिखेंगे, समरी के एक पैराग्राफ में डालेंगे। समरी के अंदर हम फर्दर एम्बॉडीमेंट्स को एक्सप्लेन करते हैं, जो भी डिवाइस के कंपोनेंट है, कैसे वो वर्क कर रहे हैं, उसका क्या मैकेनिज्म है, वो प्रॉपर्ली एक्सप्लेन्ड होगा। फिर उसके बाद हमारा स्टेटमेंट ऑफ ड्राइंग्स आता है, जिसके अंदर हम ड्राइंग्स फिगर 1, फिगर 2, फिगर 3 इलस्ट्रेट जो भी कर रहे हैं वो ड्राइंग्स की इन्फॉर्मेशन वहां प्रोवाइड करेंगे। ड्राइंग्स के अंदर कोई टेक्स्ट नहीं प्रोवाइड करेंगे, नंबरिंग से डिनोट करेंगे, न्यूमरोलॉजी से नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। ओके, नेक्स्ट वी हैव डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन में हम जो भी फिगर हम ऊपर बता रहे हैं उनको प्रॉपर्ली डिस्क्राइब करेंगे नीचे। और डिस्क्रिप्शन, डिटेल डिस्क्रिप्शन में कई बार वर्किंग एग्जांपल्स भी अलाउड होते हैं। वर्किंग एग्जांपल्स बायोटेक के केस में और फार्मा के केस में, जैसे कोई ड्रग है, अब आप ड्रग के ऊपर पेटेंट फाइल कर रहे हैं तो ड्रग का आपको बताना होगा कि अगर आपने चूहों पे एक्सपेरिमेंट किया है, किसी भी आपने एक्सपेरिमेंट किया है, तो उसका क्या ट्रायल रहा, क्या रिजल्ट रहे, वो दवाई कोई रिएक्शन तो नहीं करी, कोई साइड इफेक्ट तो नहीं दे रही है। तो बायो और केमिस्ट्री का फार्मा के केस में हमें एक क्लिनिकल ट्रायल के रिजल्ट देने होते हैं, एग्जाम्पल 1, एग्जाम्पल 2। जब हम बात करते हैं मैथमेटिक्स की, बात करते हैं सीएस की, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल की, वी डोंट हैव टू रिक्वायर एनी examples, but we have to illustrate or we have to elaborate the figures or the description of the invention in the detailed description by giving a specific examples. The claims are the important part of the invention. 10 claims आपके allowed होते हैं. We have to draft 2 independent claim, या तो process होगा या फिर वो device होगा। नंबर 1 जो है इंडिपेंडेंट क्लेम होगा, जो ब्रॉडली क्लासिफाइड होगा, प्रॉपर्ली डिस्क्राइब होगा, हर कंपोनेंट को आपको अच्छे से उसमें डालना होता है। एब्स्ट्रैक्ट आपको 150 वर्ड्स की लिमिट दी जाती है, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आप बताते हैं और एक सेपरेट पेज पर एब्स्ट्रैक्ट जाएगा। आप ये नहीं कि किसी के साथ मिक्स कर दे, सेपरेट पेज पे एब्स्ट्रैक्ट डालेंगे और 15 वर्ड का टाइटल डालेंगे, उसके बाद उसको फाइनल करेंगे। ड्राइंग्स आपकी A4 शीट पे जाती है, ड्राइंग्स के नीचे एजेंट का नाम लिखा होता है, उसके साइन जाते हैं, और एप्लीकेंट अगर यूनिवर्सिटी है तो उसके भी साइन जाएंगे। और ड्राइंग के ऊपर कोई भी टेक्स्ट नहीं लिखेंगे, फिगर 1, फिगर 2, फिगर 3 के अलावा। और ऊपर राइट हैंड साइड में नंबर ऑफ ड्राइंग्स लिखा होता है, नंबर ऑफ ड्राइंग शीट कितनी है वो टोटल आप स्पेसिफाइड करेंगे। ओके, ये स्ट्रक्चर ऑफ स्पेसिफिकेशन। टाइटल हमारा हमेशा वही जो मैंने आपको बताया, ठीक है, ये मैं ऑलरेडी आपको डिस्क्राइब कर चुकी हूँ। उसके बाद हम बात करते हैं पेटेंट एग्जाम्पल। सिस्टम एंड मेथड फॉर सिक्योरिंग ए कम्युनिकेशन चैनल। ठीक है, एक पेटेंट है जिसमें एक सिस्टम बनाया है जो क्या कर रहा है, एक कम्युनिकेशन चैनल को सिक्योर कर रहा है। अब इसके अंदर भी आप देखो मैथमेटिक्स का थोड़ा यूज हुआ है, जिसके अंदर वो इंक्लूड कर रहा है ऑब्टेनिंग ए फर्स्ट वैल्यू बाय द फर्स्ट एंड सेकंड डिवाइस। ओके, कुछ वैल्यूज ऑब्टेन्ड हो रही है, द सेकंड वैल्यू मे बी रैंडमली सिलेक्टेड बाय द फर्स्ट डिवाइस। ऐसे वही मैंने बताया कि अगर आप सीएस की इन्वेंशन ले रहे हैं और वहां पे मैथमेटिक्स का यूज हो रहा है, देन दे आर पेटेंटेबल। बट एज सच अगर सीधा ही आप लेके आ गए कि मैम मैथमेटिक्स की इन्वेंशन है और ये पेटेंट करना है, ये फॉर्मूला एल्गोरिथम है, तो वो चीज को पेटेंट ऑफिस डिनाई करेगा पेटेंट फाइल करने के लिए। नेक्स्ट आपका सिस्टम एंड apparatus and computer program product for installing a security certificates in publicly accessible printer station through the gateway. So again, it's the embodiment facilitate the management of security certificates for the printer that are used in public locales. The system communicate with the manages the printer with the benefit of security certificate protocols on demand and user request to print document within the particular printer. So once the document is requested to be printed at the printer, the system registers the printer within the network. So these are the examples of patents, and we have product and process patent, and these are smart inventions. जैसे एम्बर ब्रश का एग्जांपल है, जहाँ पे ऑटोमेटिक हैंड फ्री टूथ ब्रश है कि आपको कुछ नहीं करना, आपको सिंपल अपने मुंह में रखना और आपके दांत पूरे क्लीन हो जाएंगे। अगेन विद अ सिंगल प्रेस, लाइक सिंगल बटन, your teeth will clean within a second. Next, we have when we are talking about telemedicine, we are talking about the advancement in the medical field. We now have indigestible biosensors, जो कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस है जो बॉडी के अंदर आपकी जाती है, कैप्सूल्स की फॉर्म में होती है। बायोकम्पैटिबल मटेरियल यूज किया जिसके अंदर माइक्रो प्रोसेसर, कंट्रोलर, सेंसर्स हैं जो कि क्या करते हैं, गिविंग द डिवाइस द एबिलिटी टू टेलीकम्युनिकेट फॉर द यूज ऑफ हेल्थ केयर इंडस्ट्रीज। और जनरली ये कैप्सूल्स हम डायग्नोस्टिक पर्पस के लिए यूज करते हैं।
नेक्स्ट वी हैव स्मार्ट इनहेलर्स। स्मार्ट इनहेलर्स कई बार आपने देखा होगा, जैसे मेरी बेटी को कभी कभी अस्थमा की प्रॉब्लम होती है, तो इनहेलर्स की दवाई जो है वो अच्छे से नहीं ले पाती, अंदर नहीं जा पाती उसकी सांस के अंदर, ओके, लंग्स के अंदर प्रॉपर नहीं जा पाती है। तो उसके लिए हमने क्या किया, स्मार्ट इनहेलर्स बनाए हैं जो न्यू डिजिटल टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं, जिसके अंदर वो improve the disease management, the respiratory disease, and these smart inhalers are basically the respiratory inhalers equipped with the digital sensors. Next, now we have some non-patentable inventions. So everything is not patentable under the patent office. तो अगर आप बोले कि सब कुछ patentable है, no, it is not patentable. कुछ ऐसी इन्वेंशन है जो पेटेंट ऑफिस आपको अलाउ नहीं करता है कि नहीं भैया आप इनका पेटेंट नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल एनी फ्रिवलेस मशीन, ओके, एनी फ्रिवलेस डिवाइस। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक सर आए और उन्होंने बोला कि पूजा मैं ना कुछ मंत्रों का उच्चारण करके एक प्लांट की ग्रोथ को इंक्रीज कर सकता हूँ, ठीक है। या फिर एक पेटेंट था, पेटेंट ऑफिस में इन्वेंशन आया कि भाई हम एक भैंस या गाय थी शायद, एक एनिमल था, उसको वो सुबह शाम म्यूजिक सुनाते थे और उन्होंने क्लेम किया कि जो भैंस है, जो गाय है, ये 2 किलो दूध की डिमांड जो है वो इंक्रीज कर रही है, बिकॉज क्योंकि ये गाना सुनती है सुबह शाम। तो पेटेंट ऑफिस में आप सोचो ऐसी ऐसी इन्वेंशंस भी लोग लेके आते हैं कि भाई हम इनको गाना सुनाते हैं और जिसकी वजह से ये इसका जो मिल्क का प्रोडक्शन है वो इंक्रीज हो रहा है, ओके। तो पेटेंट ऑफिस तो ऐसी बातें मानेगा नहीं, उनको तो साइंटिफिक रिजल्ट चाहिए। तो ऐसी फ्रिवलेस इन्वेंशंस को पेटेंट ऑफिस पेटेंट नहीं करता है। सेकेंड, डिस्कवरीज। अगर आप कोई डिस्कवरी लेके आए मेरे पास और बोले कि मैम ये डिस्कवरी है जो मैंने डिस्कवर किया, किसी ने डिस्कवर नहीं किया ये प्लांट, पर मैंने डिस्कवर किया, नाउ आई वांट टू फाइल अ पेटेंट फॉर द समथिंग। So these discovery, जो भी हम डिस्कवरी चैनल पे डिस्कवरीज देखते हैं, so they are not again patentable. My voice is audible, sir? Tanu sir? Yes, madam, you are audible. No issue. Okay, okay. So discoveries, they are again not patentable. तो inventions patentable है अगर आप कोई पुरानी कोई प्रायर आर्ट है उसका कुछ मॉडिफिकेशन करते हैं, आप नया कुछ इन्वेंट करते हैं, वो पेटेंट कर सकते हैं। बट ऐसी डिस्कवरीज पेटेंटेबल नहीं है। अनएथिकल इन्वेंशंस भी पेटेंटेबल नहीं है। अनएथिकल मतलब आलतू फालतू के कुछ भी आप बोले कि नहीं नहीं मैं तारे तोड़ के ला दूंगा या फिर मैं ऐसा कर दूंगा या मैं इस मशीन से ये कर दूंगा, तो ऐसी मतलब अनएथिकल बातें, ठीक है, जिसका कोई जवाब, जिसका कोई लॉजिक नहीं है, ऐसी इन्वेंशंस को भी पेटेंट ऑफिस पेटेंट नहीं करता है। एडमिक्शंस मतलब आपने देखा होगा आजकल बच्चों की दवाइयां, ठीक है, आपने देखा बच्चों की दवाइयों में क्रोसिन भी होता है, पैरासीटामोल भी होता है, कि वो बहुत सारे मिक्सचर्स आज एक ही उसमें आने लगे हैं, ठीक है। पहले क्या होता था, पैरासीटामोल के लिए अलग हमारे पास दवाई है, ठीक है। अब आप देखो कोई एक सॉल्यूशन होगा, ठीक है, और उसके अंदर 2-3 चीजें मिक्स होती हैं। बच्चे के जुकाम के लिए भी वो काम कर रही है, कोल्ड के लिए भी काम कर रही है, बुखार भी उतार रही है और पेन वेन को भी कम कर रही है। तो ऐसे एडमिक्शंस को पेटेंट ऑफिस करता है कि अगर ये एडमिक्शंस आप पेटेंट करते हैं, आपने क्या किया, आपने एक नमक पानी का घोल बनाया और आपने कहा मुझे इस पे पेटेंट लेना है, तो these are not patentable unless and until you prove some properties of that invention or you prove some properties of that solution. Okay, next, method of agriculture. आप मेरे पास आया और बोले कि मैम मुझे ना मशरूम ग्रो करने का मेरे पास एक बहुत नया मेथड है, या चावल ग्रो करने का मेरे पास इतना नया मेथड है कि मैं उस मेथड को पेटेंट करना चाहता हूँ, तो दे आर नॉट पेटेंटेबल। हाँ, अगर आप कोई ऐसी मशीन बनाना चाहते हैं जो चावल से हंस को रिमूव कर रही है, धान को चावल से रिमूव कर रही है, ठीक है, उसको आप पेटेंट कर सकते हैं, उस थ्रेशर को पेटेंट कर सकते हैं, ओके। बट उस ड्रिलर मशीन को पेटेंट कर सकते हैं, उस सोइंग मशीन को पेटेंट कर सकते हैं जो हेल्प कर रही है चावल को सो करने में, बट मेथड्स दे आर नॉट पेटेंटेबल। नेक्स्ट मेथड, मेडिकल ट्रीटमेंट्स। ओके, मेडिकल ट्रीटमेंट्स भी आपके पेटेंटेबल नहीं है। तो आप अगर बोले कि मैम मेरे को सर्जरी का मेथड, ठीक है, आंख में से कैटरैक्ट हो गया है, ठीक है, उसका मुझे मेथड नया पता चला है कि अगर मैं इस तरीके से सर्जरी करूं तो ये बड़ा अच्छा मेथड होगा और इसको मुझे पेटेंट करना है, तो पेटेंट ऑफिस कहेगा नहीं भैया ये मेथड जो है ये पेटेंटेबल नहीं है, आप जाके सेक्शन 3 पढ़ो और फिर आप मेरे पास आओ। तो मेडिकल ट्रीटमेंट पेटेंटेबल नहीं है। डायग्नोस्टिक किट पेटेंटेबल है, जैसे कोरोना के लिए आपने किट बनाई, डेंगू के लिए कोई किट बनाई, ठीक है, मलेरिया को टेस्ट करने के लिए अगर आपने कोई किट बनाई है तो किट पेटेंटेबल है। नेक्स्ट, आपका प्लांट और एनिमल पेटेंटेबल नहीं है। आप गए पहाड़ों पे और आपको एक नया जड़ी बूटी दिखा और आपने बोला मैम ये जड़ी बूटी मुझे पेटेंट करनी है, ये तो हमारे यूपी में किसी को पता ही नहीं इसके बारे में। तो ये जड़ी बूटियां अगर वो ऑलरेडी डाइवर्सिटी बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी में नोन है तो आप ऐसी चीजों को भी पेटेंट नहीं कर सकते हैं। प्रेजेंटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, जैसे मैं प्रेजेंटेशन दे रही हूँ, कोई भी किसी ने कुछ प्रेजेंट किया, आपने बोला ये रिपोर्टिंग है, ये डेटा रिपोर्टर ने जो रिपोर्ट किया, ठीक है, न्यूज चैनल का डेटा, इन सबको मुझे पेटेंट करना, तो दे आर ऑल्सो नॉट अलाउड। मेथड ऑफ प्लेइंग गेम इज नॉट अलाउड। ट्रेडिशनल नॉलेज, ट्रेडिशनल नॉलेज का मतलब है कि दादी माँ के नुस्खे, जैसे सबको पता है हल्दी वुंड हीलिंग प्रॉपर्टी के लिए नोन थी,
ठीक है, हल्दी के दादी माँ के नुस्खे टाइप होते थे ना कि पहले चोट लग गई तो अब हल्दी का दूध पिला दो, और आप बोले कि मैम हल्दी तो बहुत ही लाभदायक है और मैं इसका पेटेंट करूंगा क्योंकि हल्दी से चोट ठीक हो जाती है, तो पेटेंट ऑफिस कहेगा भैया जाओ जरा पहले आयुर्वेदा खोलो और देखो उसमें हल्दी का तो कब से नोन है ये चीजें, ये तुम हमें नया क्या बता रहे हो। सेम एलोवेरा के लिए आपने देखा आजकल स्किन के लिए एलोवेरा जेल आ गया, एलोवेरा क्रीम आया और एलोवेरा जूस आ गए, लोग एलोवेरा शेक पी रहे हैं। तो एलोवेरा तो आप सोचो किस किस फॉर्म में मिल रहा है मार्केट में, तो हर चीज में वो यही बोल रहे हैं कि भैया आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छा है, एलोवेरा जूस पियो है, पेट के लिए बहुत अच्छा है। तो ये प्रॉपर्टीज अगर ये चीजें नोन है, ठीक है, आयुर्वेदा में पता है, तो इन चीजों का पेटेंट लेना बड़ा मुश्किल है। सो ये कुछ ऐसी इन्वेंशन थी सेक्शन 3 के अंडर जो नॉट पेटेंटेबल की कैटेगरी में आती है, कि अगर आप ऐसी कोई इन्वेंशन इन्वेंट करते हैं तो दीज आर नॉट पेटेंटेबल। नेक्स्ट, कैन सॉफ्टवेयर बी पेटेंटेड, कि मैम हमने एक एल्गोरिथम बनाया है या हमारे पास एक इन्वेंशन है जैसे आईओटी, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, आप आजकल आईओटी को किसी से भी कनेक्ट कर दें, ठीक है, बस आपको क्या करना है, आपको अपने रिमोट कंट्रोल को वाईफाई से कनेक्ट करना है तो चल गया, ये हो गया आईओटी। आईओटी तो कहीं भी इंप्लीमेंट हो रहा है, मशीन लर्निंग कहीं भी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मतलब मशीन लर्निंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में क्या हो रहा है, भाई आपने एक प्रोग्रामिंग करनी है एक इन्वेंशन में, एक डिवाइस में, आप उसे अपने हिसाब से चला रहे हैं। जैसे रोबोट, आपने बोला ये रोबोट आपको चाय ला के देगा, अब बिना बस आपको बटन प्रेस करना है क्योंकि हमने उसकी प्रोग्रामिंग करी है, जैसे कोई आए कमरे में एंटर करे आप सीधा ट्रे लेके चाय लेके आ जाओ। बट आपने देखा मैं कैसे कैसी कॉलेज में गई तो उन्होंने कहा मैम हमने एक रोबोट बनाया था पर उसकी प्रोग्रामिंग इतनी गलत हो गई कि जब हमने उसे प्रोग्राम दिया कि भाई आप जब भी कोई आए विजिटर तो आप उसके पास ये ट्रे और पानी लेके जाएंगे, तो आपको किसी मैन पावर की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो प्रोग्रामिंग गलत होने की वजह से क्या हुआ कि वो मैन के पास तो बाद में जाता, वो एक दीवार में उसका प्रोग्रामिंग ऐसा वो एक दीवार में घुस गया, और दीवार में घुस गया और सोचो सर ने मुझे दिखाया दीवार में इतना ज्यादा गड्ढा हो गया कि उस रोबोट को कुछ समझ नहीं आ रहा। तो ये सोचो ये कंप्यूटर रिलेटेड इन्वेंशन भी बड़ी खतरनाक है कि अगर प्रोग्रामिंग सही से नहीं हुई तो बस गई इन्वेंशन। तो सारा खेल है कि अगर आप हार्डवेयर लिंक करते हैं कोई भी एल्गोरिथम के साथ तो पेटेंट ऑफिस कहते हैं कि अब अगर आप एल्गोरिथम है आपके साथ और हार्डवेयर भी लिंक कर रहा है, अगर आप इसको डिवाइस की फॉर्म में दिखाते हैं देन दे आर पेटेंटेबल। बट अगर हार्डवेयर लिंक नहीं है, हार्डवेयर का कोई लेना देना नहीं है, एल्गोरिथम है सिर्फ, तो वो पेटेंट नहीं होगा, वो आप कॉपीराइट में प्रोटेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट, ऑर्डिनरी एप्लीकेशन फाइल करते हैं इंडिया में जो हम फाइल करते हैं, अब इंडिया से बाहर आपको पेटेंट फाइल करना है, ठीक है, आप मेरे पास आए कि पूजा मैम मुझे यूएस में पेटेंट फाइल करना है, चाइना में करना है, जर्मनी में करना है, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी या तो आप पीसीटी रूट फॉलो करो, या फिर अगर क्योंकि इंडिया में हमारा रूल है कि इंडिया में एल्गोरिथम पेटेंटेबल नहीं है, ठीक है, बट आपको लगता है कि आपने एक सॉफ्टवेयर इन्वेंशन का बहुत ही प्रॉब्लम का एक अच्छा सा एक सॉल्यूशन निकाला और आप उसको प्रोटेक्ट करना चाहते हो, तो मैं आपको कहूंगी आप पेटेंट ऑफिस से परमिशन ले सकते हैं फॉर्म 25 के थ्रू। अगर आप परमिशन ले ले तो आपको पेटेंट ऑफिस अलाउ करेगा कि आप अपनी एप्लीकेशन को डायरेक्ट भी बाहर फाइल कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट, वेयर टू फाइल अ पेटेंट एप्लीकेशन, तो हमारे एप्रोप्रिएट ऑफिस है दिल्ली, मुंबई, चेन्नई एंड कलकत्ता, डिपेंडिंग ऑन द जुडिक्शन हमारा पेटेंट ऑफिस हमारा चूज करता है कि जिस जुडिक्शन से एप्लीकेशन आप फाइल करें उस जुडिक्शन में आपका पेटेंट फाइल हो जाता है। नेक्स्ट, एट द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ आईपी ऑफिसेज, मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्री एंड कॉमर्स टेक केयर करता है हमारे सारे पेटेंट और कॉपीराइट्स के लिए। अगर आपको कोई ट्रेनिंग सेंटर ट्रेनिंग ज्वाइन करनी है या ट्रेनिंग कोर्सेज करने हैं तो नागपुर में हमारा ट्रेनिंग सेंटर है, तो आप उनकी ट्रेनिंग्स को यूज कर सकते हैं। Who can file a patent application in India as an inventor? As you can also help you of filing application, नहीं तो आप किसी एजेंट की हेल्प ले सकते हैं, अटॉर्नी की हेल्प ले सकते हैं जो आपके एप्लीकेशंस को फाइल कर देगा, ठीक है, ड्राफ्टिंग में आपकी पूरी हेल्प करेगा, एफआईआर में प्रोसिक्यूशन में आपकी पूरी हेल्प करेगा। असाइनी, थ्रू एन असाइनी लाइक कोई एप्लीकेंट कोई यूनिवर्सिटी का बंदा भी पेटेंट फाइल कर सकता है। नेक्स्ट, प्रोसेस फॉर ऑब्टेनिंग अ पेटेंट, सर्च करते हैं सबसे पहले जो भी कंसेप्ट आप मुझे देंगे, उसके बाद मैं आपको एक नोवेल्टी सर्च रिपोर्ट दूंगी, नोवेल्टी सर्च के बेसिस पे मैं आपसे बोलूंगी कि आप पहले इन्वेंशन के डिफरेंसेस बताइए जो हमने सर्च किया है, हाउ योर इन्वेंशन इज बेटर देन दैट। तो जब आप मुझे डिफरेंसेस क्रिएट करके देंगे तो मैं आपको पेटेंट ड्राफ्टिंग का डिस्क्लोजर भेजूंगी जिसके अंदर आप इंट्रोडक्शन देंगे, ऑब्जेक्टिव देंगे, एडवांटेज क्या आपकी इन्वेंशन की, डिसएडवांटेज क्या है, प्रॉब्लम का क्या सोल्यूशन आपने निकाला है, और उसका मैकेनिज्म कैसे वर्क कर रहा है, और के डायग्राम्स क्या क्या अलाउड है उसके साथ अटैच किया है। तो उसके बाद पेटेंट फाइल करते हैं हम सारे फॉर्म्स के साथ, फिर पेटेंट पब्लिश हो जाता है आपका 7 डेज के अंदर। अगर हम फॉर्म 9 एक्सपेडाइट पेटेंट के लिए जाते हैं, फिर आपका पेटेंट एग्जामिन होता है पेटेंट ऑफिस में। अगर एक्सपेडाइट पेटेंट के लिए जाते हैं तो पेटेंट आपका जल्दी एग्जामिन हो जाता है और 1 साल के अंदर आपका पेटेंट ग्रांट हो जाता है।
प्रोविजनल स्पेसिफिकेशन और कंप्लीट स्पेसिफिकेशन में क्या अंतर होता है? देखो, प्रोविजनल स्पेसिफिकेशन का मतलब है मैम मेरे पास सिर्फ आइडिया है, ठीक है। आपने एक रिमोट कंट्रोल्ड कार बनाई है, रिमोट कंट्रोल बाइक बनाई है, या रिमोट कंट्रोल कोई भी एक एपरेटस बनाया है, ठीक है। तो अब आप इसका पेटेंट करना चाहते हैं तो पेटेंट प्रोविजनल फाइल कर सकते हैं, क्योंकि सिर्फ आइडिया है, अभी प्रोटोटाइप रेडी नहीं है। तो जब चीजों का प्रोटोटाइप रेडी नहीं है, प्रोटोटाइप नहीं बना है, सिर्फ आइडिया है, तो प्रोविजनल पेटेंट फाइल कीजिए, 1 साल का टाइम मिलेगा उसको कंप्लीट करने का। सो प्रोविजनल पेटेंट के यही फायदे होते हैं कि प्रायोरिटी डेट को फिक्स करने के लिए हम प्रोविजनल पेटेंट फाइल करते हैं, फिर आराम से अपनी इन्वेंशन को कंप्लीट करते हैं, और फिर उसके बाद विद इन 1 ईयर अपने पेटेंट को कंप्लीट फाइल करते हैं। कंप्लीट स्पेसिफिकेशन का मतलब है कि आइडिया रेडी है, सब कुछ रेडी है मैम, पेपर की फॉर्म में हम आपको शेयर कर देते हैं, आप हमारा पेटेंट ड्राफ्ट करवा दीजिए। तो उसके अंदर आप मुझे टाइटल देंगे, प्रायर आर्ट देंगे, ऑब्जेक्ट देंगे, क्लेम हम लिखेंगे, डिस्क्रिप्शन भी हम लिखेंगे, ठीक है। आप मुझे ड्राइंग्स अपनी रॉ फॉर्म में देंगे और उसको हम पेटेंट ऑफिस के फॉर्मेट में ड्राफ्ट करके आपको दे देंगे। पेटेंट फाइल कर दिया, एप्लीकेशन नंबर आपको इश्यू हो गया, फिर पेटेंट फॉर्म 9 फाइल करेंगे, पेटेंट पब्लिकेशन जिसे हम बोलते हैं, फॉर्म 9 फाइल करके 2500 फीस आप पे करेंगे, जिसकी वजह से पेटेंट आपका विद इन 7 डेज, आजकल 7 डेज के अंदर पेटेंट पब्लिश हो जाते हैं। हर फ्राइडे को पेटेंट ऑफिस पब्लिश करता है, तो हर फ्राइडे को आप चेक कर सकते हैं कि आपका पेटेंट पब्लिश हुआ है या नहीं। पब्लिकेशन होने के बाद आपकी ये जो जनरल है, जैसे आपके पेपर के जो जनरल होते हैं वैसे ही हमारे आईपीओ का जनरल होता है। हमारे ऐसा कुछ नहीं है एससीआई, स्कूपर्स ऐसे पेपर नहीं होते, हमारा इंडियन पेटेंट ऑफिस का ही अपना एक जनरल होता है, जहाँ पे आपका पेपर पब्लिश हो जाता है, पेटेंट पब्लिश हो जाता है, जिसके अंदर एप्लीकेशन नंबर, डेट ऑफ फाइलिंग, टाइटल, एब्स्ट्रैक्ट, ये सारी इंफॉर्मेशन वहां पे रिट्रीव कर सकते हैं। फिर होता है रिक्वेस्ट फॉर एग्जामिनेशन। रिक्वेस्ट फॉर एग्जामिनेशन में पेटेंट ऑफिस के कंट्रोलर्स आपके पेटेंट को एग्जामिन करते हैं, चेक करते हैं कि आपने जो इन्वेंशन बनाई है वो कितनी नोवेल है। ऐसा नहीं कि आप पेटेंट ऑफिस में एक न्यूक्लियर बॉम्ब, एटॉमिक बॉम्ब जैसी इन्वेंशन को फाइल कर रहे हैं और पेटेंट ऑफिस को जब पता चला कि जो भी पेटेंट आप फाइल कर रहे हैं वो तो पेटेंटेबल ही नहीं है, वो तो अलाउड ही नहीं है, क्योंकि वो तो सेक्शन 3 में फॉल कर रहा है। तो ऐसी इन्वेंशन के लिए पेटेंट ऑफिस जब तक एग्जामिन नहीं होगी एप्लीकेशन, तब तक वो आपके इन्वेंशन को ग्रांट नहीं करते हैं। तो ध्यान रखना, पब्लिकेशन जो होता है पेपर का वो आपका पूरा रिव्यू होने के बाद होता है, पर पेटेंट का पब्लिकेशन रिव्यू होने के बाद नहीं होता है। पेपर ऑटोमेटिकली, ऑटोमेटिकली 7 दिन के अंदर अगर आप अर्ली पब्लिकेशन के लिए जा रहे हैं तो पब्लिश हो जाएंगे। बट अगर आप चाहते हैं कि मेरा पेटेंट मैम ग्रांट लेवल तक जाए, ग्रांट हो जाए, तो उसके लिए आपको एग्जामिनेशन फाइल करना होगा। फॉर्म 18 इसका फॉर्म है, फॉर्म 18 के साथ 4000 फीस है, और अगर आप एक्सपेडाइट के लिए जाते हैं तो 10,000 फीस पे करके आप एक्सपेडाइट पेटेंट के लिए जा सकते हैं। अब आप पूछेंगे मैम ये एक्सपेडाइट और नॉर्मल एग्जामिनेशन क्या होता है? नॉर्मल एग्जामिनेशन की 6000 फीस देनी है आपको, एक्सपेडाइट में आपका पेटेंट 1 साल के अंदर ग्रांट हो जाएगा। पर इसकी भी 4 शर्तें हैं, 4 कंडीशन है। क्या? पहली, या तो स्टार्टअप कंपनी होनी चाहिए, दूसरी कंडीशन है कि गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए, तीसरी कंडीशन है कि या तो एमएसएमई रजिस्टर्ड कंपनी होनी चाहिए, चौथी कंडीशन है अगर कोई फीमेल कैंडिडेट एप्लीकेंट के अंदर, एप्लीकेंट की कैटेगरी में आती है तो अभी आप एक्सपेडाइट पेटेंट के लिए जा सकते हैं। ओके, एक्सपेडाइट पेटेंट की फीस अलग है, फॉर्म अलग है, फॉर्म 18A जाएगा, फीस 10,000 जाएगी। 8,000 आपकी गवर्नमेंट फीस होती है और 2,000 अटॉर्नी अपने फाइलिंग के चार्जेस लेता है। नेक्स्ट बात करते हैं प्री और पोस्ट ग्रांट ऑपोजिशन की। ऑपोजिशन का मतलब ही समझ लो कि अपोज करना, किसी के पेटेंट को रिवोक करना, चैलेंज करना। तो अगर आपको लगता है कि किसी ने आपकी गलती से पेटेंट फाइल कराया है, आपका नाम उसमें नहीं डाला है, या फिर कोई आपकी इन्वेंशन को चोरी छुपे यूज कर रहा है, आपको उसको रोकना है, स्टॉप करना है, तो आप उसके अगेंस्ट प्री ग्रांट ऑपोजिशन फाइल करा दीजिए। इसके लिए भी हमारे पास कुछ फॉर्म्स होते हैं 7 और 7A, आप उन फॉर्म्स के थ्रू प्री और पोस्ट ग्रांट ऑपोजिशन फाइल कर सकते हैं। पेटेंट फाइनली पेटेंट ऑफिस जब एग्जामिन कर देते हैं, रिव्यू कर देते हैं, फाइनल हियरिंग होने के बाद पेटेंट ग्रांट हो जाते हैं। द डे द ग्रांट एप्लीकेशन, आपको एक एप्लीकेशन नंबर, एक सर्टिफिकेट इशू होता है पेटेंट ऑफिस के अंदर जो ब्लू कलर का होता है। ये पूरा फ्लो चार्ट है, एप्लीकेशन का आइडिया आपके दिमाग में है, आपने पब्लिकेशन फाइल कराया, फिर आप उसको एग्जामिनेशन के लिए डालते हैं, एग्जामिनेशन में पेटेंट ऑफिस उसको एग्जामिन करता है, एग्जामिन करने के बाद अगर यस है तो पेटेंट ग्रांट हो जाएगा, अगर नो है तो पेटेंट रिफ्यूज हो जाएगा। अगर पेटेंट ऑफिस के ऑब्जेक्शंस जो आपने लगाए थे वो आप उनको कंपाइल नहीं कर पाते हैं तो पेटेंट आपके एप्लीकेशन को रिफ्यूज कर देता है, जिसके लिए पहले अपीलेट बोर्ड में जाना होता था, बट अपीलेट बोर्ड अब डिसमिस हो गई है, तो इसलिए सीधा आप हाई कोर्ट में अपील करेंगे। पेटेंट ग्रांट होने के बाद आपको एक मेंटेनेंस फीस पे करनी होती है, रिन्यूअल फीस पे करनी होती है, क्योंकि पेटेंट के राइट 20 साल के लिए मिलते हैं, तो 20 साल तक वो एक्टिव रहे पेटेंट आपका, तो इसके लिए आपको मेंटेनेंस फीस पेटेंट ग्रांट होने के बाद पेटेंट ऑफिस चार्ज करता है। नेक्स्ट बात करते हैं कंपलसरी लाइसेंस। कंपलसरी लाइसेंस होता है कि कोई पेटेंट आप लेके बैठ गए, ग्रांट हो गया, बट आप उसका कुछ कर ही नहीं रहे। जैसे कोरोना में सपोज कोई फार्मास्यूटिकल कंपनी के पास कोई कोरोना का पेटेंट था, एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है, और कोरोना की इंजेक्शन भी था या पेटेंट उसने ऑलरेडी फाइल किया हुआ है, बट क्योंकि आप कोरोना पैंडेमिक की सिचुएशन में
गवर्नमेंट क्या करेगी, उससे वो पेटेंट ले लेगी, क्योंकि जब ऐसी पैंडेमिक कंडीशंस आती है जहाँ पे उनको लगता है कि गवर्नमेंट को लगता है कि हमारा जो देश है वो एक ऐसी बीमारी से जूझ रहा है, और अगर उसका किसी कंट्री के पास पेटेंट है तो वो क्या करता है, उसको कंपल्सरी लाइसेंस के लिए ग्रांट कर देता है, ठीक है। या फिर दूसरी कंडीशन है कि अगर कोई पेटेंट लेके बैठा है, उसको रीजनेबल प्राइस में नहीं उसको बेच रहा है, अवेलेबल नहीं है पब्लिकली, मतलब बाहर बेच रहा है, इंडिया में वो अवेलेबल ही नहीं है प्रोडक्ट, तो उसके लिए भी आप कंपल्सरी लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो कंपल्सरी लाइसेंस मोटा मोटा समझे कि कोई पेटेंट आपने फाइल किया, ग्रांट भी करा लिया, बट आपने उसको किसी को लाइसेंस नहीं किया, आप खुद ही लेके बैठे हैं, और अगर लाइसेंस नहीं भी किया पर अगर उसे बेच भी रहे हैं मार्केट में, बहुत ही हाई प्राइस में उसको बेच रहे हैं, तो ये सारी कंडीशंस होती है कि आप फिर उसके लिए क्या करते हैं, अपनी आवाज उठाते हैं, पेटेंट ऑफिस में एप्लीकेशन फाइल करते हैं कि भाई ये जो पेटेंट ये इस कंपनी को दिया था जो कि मार्केट में अवेलेबल नहीं है प्रोडक्ट, तो आप ये पेटेंट हमें दे दीजिए, हम एक रीजनेबल प्राइस में इसको मार्केट में डाल के बेचेंगे। ओके, नेक्स्ट है पेटेंट इन्फ्रिंजमेंट। पेटेंट इन्फ्रिंजमेंट होता है कि कोई आपकी इन्वेंशन को चोरी करके भाग रहा है, तो उसके लिए भी आपके पास राइट्स है, आप कोर्ट में जाएं, उसके अगेंस्ट केस फाइल करें। पहले आप लोअर कोर्ट में जाएंगे, लोअर कोर्ट से फिर केस आपका हाई कोर्ट और नेक्स्ट मूव करता है, ठीक है। और उसके नुकसान क्या होते हैं, जो भी पेटेंट फाइल, जिसका भी पेटेंट अपोज हो रहा है या फिर जिसने भी उसका पेटेंट जितना भी चोरी किया है, तो कोर्ट ये डिसाइड करता है कि डैमेजेस उसको पे करने होते हैं, रॉयल्टीज उसको पे करनी होती है, और उसके लिए जेल भी हो सकती है, क्योंकि इसमें इम्प्रिजमेंट का भी चांस होता है। सो ये केस था रॉयल एनफील्ड वर्सेस फ्लैश इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी का। यूनिवर्सिटी को बहुत ही हैंडसम अवार्ड मिला था फॉर दिस इन्फ्रिंजमेंट केस। रॉयल एनफील्ड के ऊपर एक लॉ सूट फाइल किया, किसने, एक कंपनी ने। उन्होंने बोला कि जी जो ये रॉयल एनफील्ड है, इन्होंने कुछ हमारे पेटेंट्स को यूज किया अपनी मोटरसाइकिल के अंदर विदाउट द नेसेसरी रेमुनरेशन, हमें पैसे भी नहीं दिए। Patent belong to Flash Electronics India, an Indian ancestry making company. The patent in question is registered in US and the whole host is European countries. तो जब ये केस फाइल हुआ तो बाद में कोर्ट ने डिसाइड किया कि आपको डैमेजेस पे करने हैं उस फ्लैश इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी को। सेकंड एक केस आया था आपका, जूरी फाउंड एप्पल इनकॉर्पोरेशन। एप्पल इनकॉर्पोरेशन के लिए केस फाइल हुआ फॉर इन्फ्रिंजिंग ए पेटेंट ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ विंसन मेडिसन and ordered the giant to pay $234 million amount. ओके, इतना अमाउंट पे करने के लिए बोला, किसको, एप्पल को, क्योंकि उसने क्या किया था, कोई यूनिवर्सिटी का जो पेटेंट था उसको यूज किया, उसको इम्प्लीमेंट किया अपने एप्पल फोन के अंदर। सो ऐसे कुछ पेटेंट्स होते हैं जो यूनिवर्सिटीज में फाइल होते हैं, तो कई लोग बिना परमिशन के, उनको लगता है कि वाह रिसर्चर या इन्वेंटर ने बड़ा अच्छा पेटेंट फाइल किया है, उनकी बिना परमिशन को उसको इम्प्लीमेंट कर लेते हैं। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि कल को कोई आप प्रोडक्ट देखें और आपको लगे ये टेक्नोलॉजी तो मेरी है, या ये काम तो मैंने फाइल किया था 10 साल या 4 साल पहले, तो आपके पास पूरे राइट्स है कि आप उनके अगेंस्ट आवाज उठा सकते हैं और इनके अगेंस्ट लिटिगेशन फाइल कर सकते हैं। सो दीज आर इम्पोर्टेंट पीसीटी एप्लीकेशन मैं बता चुकी हूँ कि इंडिया में आप लोकल एप्लीकेशन फाइल करते हैं, फिर विद इन 12 मंथ्स डिफरेंट एप्लीकेशन फाइल करते हैं। ओके, फिर आप 0 मंथ में जब आपने फाइल की लोकल एप्लीकेशन, फिर आपके पास 30 to 31 मंथ्स का फेज मिलता है एंटर करने के लिए डिफरेंट कंट्रीज में। ओके, पहले तो आप इंडिया में फाइल करो, इंडिया के बाहर आपको जिस कंट्री में पेटेंट फाइल करना है, तो 30 और 31 मंथ्स के बाद आपको एक लॉकिंग पीरियड मिल जाता है कि आप जिस कंट्री में जाना चाहते हो उस कंट्री में पीसीटी रूट के थ्रू जा सकते हैं। नेक्स्ट आपका ये जो केस स्टडी थी बासमती राइस और टेक्सामती की, बासमती राइस और टेक्सामती का था, हल्दी को भाई फॉरेन वालों को पेटेंट मिल गया, हमें क्यों नहीं मिला, ये जो मिथ था वो सीएसआईआर ने रिवोक किया। जब यूएसपीटीओ को हल्दी के वुंड हीलिंग प्रॉपर्टी के लिए पेटेंट ग्रांट हुआ, तो सीएसआईआर ने पेटेंट को अपोज किया और बोला कि ये पेटेंट तो हमारे इंडिया में तो कब से यूज होता आ रहा है, हम तो हल्दी को वुंड हीलिंग प्रॉपर्टी कब से नोन है, तो उस पेटेंट को फिर 1997 में कैंसिल कर दिया गया। सेकेंड एक नीम के लिए और बासमती राइस का एक जीआई का केस था। बासमती राइस इंडियन ओरिजिन ऑलरेडी रजिस्टर्ड थी, जिसकी कुछ राइस वेराइटीज फॉरेन में उन्होंने क्या किया, टेक्सास में ले जाके उसकी राइस वेराइटीज को चेंज करके, कुछ नाम चेंज करके पेटेंट फाइल किया। तो बाद में जब पता चला ये जो वेराइटीज है जो पेटेंट फाइल हुआ है ये तो ऑलरेडी इंडियन ओरिजिन और इंडिया की है, हरियाणा पंजाब से रिलेटेड है, तो फाइनली ये जो टेक्सामती राइस की नाम की वेराइटी रखी उसको भी कैंसिल कर दिया गया, और हमारा जो इंडिया था दैट विंस दैट केस फॉर दिस बासमती एंड टेक्सामती राइस। सेम आपका नीम के लिए था कि नीम बायोपेस्टिसाइड है, नीम के कुछ इंग्रेडिएंट है जो कि एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी के लिए नोन है। फाइनली ये पेटेंट भी यूरोप के अंदर रिवोक हो गया था ऑन द बेसिस ऑफ लैक ऑफ इन्वेंटिव स्टेप एंड नोवेल्टी। सो दीज आर द वेरी इंटरेस्टिंग केस स्टडी, जो कि हर एक जो भी आईपीआर का कोई लेक्चर देता है तो वो ये स्टडी बता ही देता है। तो इसका मतलब ये है कि जो ट्रेडिशनल नॉलेज वाली चीजें हैं, और अगर आप बोलें कि
जामुन खाने से शुगर कम होती है, वो हम सबको पता है। तो अगर आप जामुन का पाउडर बना लेते हैं और आप बोलते हैं कि मैं एक जामुन का पाउडर, ये एक मेरे पास एक दवाई है जो मैं पेटेंट करना चाहता हूँ, वो क्या है कि जामुन का पाउडर, तो ये तो ऑब्वियस सी बात है, तो ट्रेडिशनल नॉलेज में नोन है। तो ऐसी सच इन्वेंशन को पेटेंट ऑफिस बोलेगा नहीं, आप ऐसी इन्वेंशन को पेटेंट नहीं कर सकते। सो दीज आर द इंपॉर्टेंट रेफरेंसेज, www.ipindia.in, जहाँ पे आप आईपी से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन रिट्रीव कर सकते हैं, स्टेटस चेक कर सकते हैं, और कोई भी मतलब अगर आपको पेटेंट ऑफिस के जर्नल्स भी चेक करने हैं तो फ्राइडे में पेटेंट ऑफिस के जर्नल पब्लिश होते हैं, तो वहां से जाके भी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। सो थैंक यू and hope you all enjoy my lecture. I have covered every points, every from drafting, provision draft, ठीक है, कंप्लीट स्पेसिफिकेशन, कितना टाइम पीरियड होता है, 1 साल के अंदर प्रोविजन से कंप्लीट कर सकते हैं। अगर आप उसके बाद पेटेंट पब्लिश होता है, पब्लिशिकेशन के बाद एग्जामिनेशन के लिए फाइल करना होगा। अगर ग्रांट के लिए जाना है, पेटेंट ऑफिस से एफईआर आएंगे, 6 महीने का टाइम मिलेगा उसको रिप्लाई करने का, हियरिंग होगी और पेटेंट आपका ग्रांट हो जाएगा। सो दिस इज ऑल अबाउट इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स एंड ड्राफ्टिंग के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने बताया। हाउ टू ड्राफ्ट द एप्लीकेशन, टाइटल आप 15 वर्ड से ज्यादा नहीं लिखेंगे, एब्स्ट्रैक्ट 150 वर्ड्स की लिमिट है। एब्स्ट्रैक्ट के अंदर प्रॉब्लम टू सॉल्यूशन 1 पेज के अंदर, एक सिंगल पेज के अंदर एब्स्ट्रैक्ट जाएगा। बैकग्राउंड के अंदर प्रायर आर्ट बताएंगे, इंट्रोडक्शन से शुरू करेंगे, क्या प्रॉब्लम है, उसका क्या हमने सॉल्यूशन निकाला है। समरी ऑफ द इंबॉडीमेंट्स एक पैराग्राफ में कंपाइल कर सकते हैं, ये इंबॉडीमेंट्स को फर्दर डिस्क्राइब कर सकते हैं डिवाइस को लेके। फिर डिटेल डिस्क्रिप्शन डालेंगे जिसके अंदर आप फिगर 1, फिगर 2, फिगर 3 जो भी फिगर्स आप बता रहे हैं उनको प्रॉपर्ली डिस्क्राइब करेंगे। उसके बाद जो भी कंटेंट है, जो भी पार्ट्स है प्रोडक्ट के, उसको नंबरिंग से डिनोट करेंगे, और वो नंबरिंग डिटेल डिस्क्रिप्शन के कंपोनेंट के आगे भी होनी चाहिए। एंड क्लेम्स आपके मेन पार्ट ऑफ द लीगल प्रोटेक्शन ऑफ द इन्वेंशन, इंडिपेंडेंट क्लेम और डिपेंडेंट क्लेम। इंडिपेंडेंट क्लेम आपका प्रोडक्ट पेटेंट या प्रोसेस क्लेम होगा, डिपेंडेंट क्लेम उसके ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, जो कि इट कैन बी एन नंबर। 10 क्लेम्स तक फ्री हैं, बट अगर 10 क्लेम्स के बियॉन्ड जाते हैं इट इज चार्जेबल, लाइक 325 पर क्लेम यू हैव टू पे फॉर द एक्स्ट्रा मनी। ऐसे नहीं, आप 20 क्लेम बना सकते हैं, बट आपको 10 जो एक्स्ट्रा क्लेम है उनके आपको चार्ज देना होगा। दैट्स इट। सो थैंक यू, and now if you have any queries you can ask. Thank you so much, ma'am. And I personally enjoyed this session very much, and I hope everybody enjoyed it. And ma'am, more or less you have covered all the things regarding the patent filing and filling. And now I request participants to share your queries or questions in the chat box. Tarun sir, over to you. Thank you, sir. First of all, thank you so much, ma'am, for enlightening us about all the details about the patent filing process and enforcement in India. It was very informative talk. We have some questions from participants. Sir, am I audible? Yes, absolutely audible. Okay. There is one question from participant side. Is there any limit to the number of diagrams that can be included in Indian patents? नहीं, देखो, the limit of the total drafting is 30 pages. 30 पेजेस के अगेन द थिंग इज कि 30 पेजेस के अंदर आपको पूरा ड्राफ्ट लिखना होता है जिसके अंदर ड्राइंग्स भी इंक्लूड होती हैं। अगर आपका 30 पेजेस से एक्सीड कर रहा है देन अगेन यू हैव टू पे। Okay, so there is no limit पर of पेज, diagram. देयर इज नो लिमिट, नो लिमिट, मतलब पूरा आप पेटेंट जो भी लिख रहे हैं आप कंटेंट प्लस डायग्राम 30 पेजेस में कंपाइल करो, ठीक है। अगर आपको लग रहा है कि नहीं मैम 30 पेजेस से ज्यादा जा रहा है, तो अगर लग रहा है आपको वो इंपॉर्टेंट है तो देन यू हैव टू पे द एक्स्ट्रा पे मनी फॉर एक्स्ट्रा पेजेस। Okay. Then the second thing is in basically mathematics, there's some programming. We are doing some mathematical calculation by doing some numerical coding and numerical programming. So that cannot be patentable, is it? वो देखो एज सच वो कॉपीराइट में जा सकते हैं, जो एल्गोरिथम्स हैं आपके कॉपीराइट कर सकते हैं, बट जैसे मैंने आपको बताया कि मैथमेटिकल इक्वेशंस एज सच दे आर नॉट पेटेंटेबल। अगर आप उन प्रोग्रामिंग्स को किसी डिवाइस के साथ बताएंगे कि इस डिवाइस के अंदर ये प्रोग्रामिंग की वजह से ये आउटपुट जनरेट हो रहा है, जैसे मैंने बीपी मॉनिटरिंग डिवाइस का मैंने बताया कि आउटपुट तो एक जनरेट हो रहा है ना, एक वैल्यू आपको निकल के आ रही है, वो वैल्यू कैसे निकल के आ रही है, तो वो पूरा प्रोग्रामिंग ही है। तो अगर आप ऐसे बताते हैं डिवाइस के साथ कैसे आपका ये मैथमेटिकल इक्वेशन इंप्लीमेंट कर रहा है, देन ओनली दे आर पेटेंटेबल। Okay, so you mean that the mathematical solution of any kind of equations, we can say numerically with the help of some software,
that can be Yes. applied for the copyright. सॉफ्टवेयर प्लस हार्डवेयर, यस यस, अगर आप Software सॉफ्टवेयर plus- और हार्डवेयर के साथ कंपाइल करें so they are patentable. Okay. There is one more question. Are invention that can be helpful for defense sector or implication, example bomb detection and disposal of robot and drone, patentable? No, atomic bomb is not patentable. They comes under secrecy direction. तो अगर आप ये पेटेंट फाइल भी करते हैं तो डीआरडीओ लाइक डिफेंस रिलेटेड इन्वेंशन जितनी भी है ये डीआरडीओ टेक ओवर कर लेते हैं। उसके बाद जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर चली जाती है तो सेंट्रल गवर्नमेंट उनके पास राइट्स होते हैं, फिर उसको वो रिवोक करेंगे तभी उसको फर्दर लेके जाएंगे। तो अगर गवर्नमेंट को ये लगता है कि ये पेटेंट तो है हमारे नेशनल कंट्री के लिए यूज होगी, सिक्योरिटी रीजंस के लिए ये बनाई है किसी ने, तो वो फिर उनके पास राइट्स चले जाते हैं, तो वो फिर उसको बताएंगे कि आगे ये ग्रांट होगा या नहीं होगा। अगर ग्रांट होती है ऐसी इन्वेंशन तो उसके लिए आपको रॉयल्टी दी जाती है गवर्नमेंट की तरफ से, बट वो एक्सेप्शनल केसेस चले जाते हैं। वो एक नॉर्मल एप्लीकेशन नहीं रहेगी जहाँ पे आप ये नहीं बोल सकते कि पूजा मैम हमने इसके लिए फॉर्म 9 फाइल किया था, ये पब्लिश क्यों नहीं हुआ, क्योंकि जितनी भी सीक्रेसी डायरेक्शन रिलेटेड इन्वेंशन होती है वो पब्लिश नहीं होती है। Okay, ma'am, one more question. Is there any difference of work? Basically, someone we are applying in the Indian patent house and someone is applying from the outside, like the Australian patent house and USA patent house. Yes, yes, yes. Like, see, हर कंट्री का जो फॉर्मेट है वो बिल्कुल डिफरेंट होता है। इंडिया में और यूएस की जो लॉज है वो भी डिफरेंट है। जैसे यूएस में वो बोल रहे हैं कि एल्गोरिथम पेटेंटेबल है, इंडिया में बोल रहे हैं एल्गोरिथम पेटेंटेबल नहीं है। यूएस में 20 क्लेम अलाउड है, हमारे यहाँ 20 क्लेम अलाउड नहीं है, हमारे यहाँ सिर्फ 10 ही क्लेम अलाउड है। वहां पे मल्टीपल इंडिपेंडेंट क्लेम अलाउड है। यहाँ पे हर कंट्री का जो लिखने का तरीका है ड्राफ्टिंग का वो डिफरेंट है। ठीक है, तो आप ये नहीं कह सकते जो इंडिया में आपने ड्राफ्ट किया, जो इंडिया के लॉज है वो आपके यूएस के साथ भी मैच करेंगे, नहीं। और दूसरी बात, अगर आप मेरे पास आते हैं और मुझसे बोलते हैं कि मैम हमको ये इंडिया में साथ पेटेंट फाइल भी करना है, यूएस में भी फाइल करना है, तो आई एम नॉट द राइट पर्सन टू फाइल योर एप्लीकेशन फॉर यूएस। व्हाई? बिकॉज फॉर दैट पर्पस यू हैव टू हायर अ यूएस अटॉर्नी। ओके, तो पेटेंट के राइट टेरिटोरियल होते हैं। जहां पेटेंट फाइल जिस कंट्री में आप रिसाइड कर रहे हैं तो पहले आप उस कंट्री में पेटेंट फाइल करेंगे, उसके बाद ही दूसरी कंट्री में अपने पेटेंट को फाइल करें। Okay, ma'am, thank you. Ma'am, is there any restriction of PI of the patents? Number of PI for the patent applying in the patent actually. Hello, am I audible? Sir, you are audible, but mine is not. Pooja ma'am, is it audible? हाँ जी, yes sir. Ma'am, the question is that how many principal investigators are allowed in Indian patent house, by Indian patent house actually, for applying in any patent? इंडियन देखो पेटेंट ऑफिस में जो एग्जामिनर होता है वो एक ही होता है सर, जो भी पर्टिकुलर फील्ड का होगा। ठीक है, तो आप देखो जब एफईआर इशू होती है तो एफईआर इशू के नीचे आपको ना एक एप्लीकेशन वो लिखा होता है, कंट्रोलर का नाम। तो जो भी कंट्रोलर उसको इन्वेस्टिगेट कर रहा है सिर्फ एक ही एप्लीकेशन में एक ही कंट्रोलर का नाम होगा। कई बार ये भी कंडीशन होती है कि आप उस कंट्रोलर से सेटिस्फाइड नहीं है, ठीक है, या उसने जो डिसीजन दिया आपको लग रहा है वो ठीक नहीं है, तो फिर आप उसके लिए एप्लीकेशन दे सकते हैं चेंज करने। Okay, ma'am. Is there any limit of applicants in particular patent? क्या सर? मतलब पेटेंट में मैडम कोई लिमिट है क्या एप्लीकेंट्स की? आप वही हम देखते हैं कि नहीं, देखो पेटेंट में कोई लिमिट नहीं है। अगर इंडिविजुअल पेटेंट फाइल करें इट कैन बी एनीथिंग, इट कैन बी नंबर ऑफ पेटेंट, बट एप्लीकेंट हमेशा, अगर यूनिवर्सिटी की मैं बात करती हूँ तो एप्लीकेंट हमेशा यूनिवर्सिटी रहेगी। इन्वेंटर में जितने मर्जी इन्वेंटर आप हो सकते हैं। Okay, ma'am. There is one more question from participants. Do design patents get examined and granted faster than unity patents? So design patents क्या होता है ना, design patents are actually not the design invention, they are only the like कि कोई भी डायग्राम है, ठीक है, उस डायग्राम को हम क्या कर रहे हैं, उस डायग्राम को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो दे आर नॉट द टेक्निकल, मतलब टेक्निकली वो इन्वेंशंस नहीं है, सिर्फ डिजाइन्स को, ऑर्नामेंटल डिजाइन्स को प्रोटेक्ट करने के लिए हम डिजाइन फाइल करते हैं, इसलिए वो जल्दी ग्रांट हो जाते हैं। पूछ लिया मैंने। हाँ
जैसे सर आपकी जो हेलमेट का डिजाइन है, ठीक है, तो हेलमेट के डिजाइन को मैं प्रोटेक्ट कर रही हूँ कि ऐसा डिजाइन हेलमेट का जैसे ये डिजाइन है वो कोई और ना बनाए, तो मैं उसकी टेक्नोलॉजी को प्रोटेक्ट नहीं कर रही, मैं उसके डिजाइन को प्रोटेक्ट कर रही हूँ, इसीलिए जल्दी फास्टर होते हैं, 6-6 महीने में भी ग्रांट हो जाते हैं आपके डिजाइन। Okay, ma'am. Ma'am, one question from one participant called Shatabdi. Shatabdi Basu is asking, should the citations included in patent be only of past 5 years or can be more? देखो वैसे तो जनरली अटॉर्नीज क्या करते हैं, साइटेशंस को इंक्लूड नहीं करते हैं। मैं तो मेरी प्रैक्टिस ये है कि मैं साइटेशन इंक्लूड ना करूं। कई बार क्या होता है, पेटेंट ऑफिस वाले वही साइटेशंस उठा के हमारे एफआईआर में डाल देते हैं कि जैसे आपने 1-2 साइटेशन डाले, ठीक है, और वही साइटेशंस उन्होंने बोल दिया पेटेंट ऑफिस में, अच्छा ठीक है आप ये बताओ इस पेटेंट से आपका इन्वेंशन कैसे डिफरेंट है, तो उनको एक क्लू मिल जाता है। तो इसीलिए इट इज एडवाइजेबल कि पहले तो आप साइटेशन डालें ना, ठीक है, बट आपको लग रहा है कि कल को ये साइटेशंस वाले हमारे पेटेंट पे कोई केस ना फाइल कर दें या बोले कि ये तो आपने हमारा पेटेंट था, हमारा इन्वेंशन चुरा लिया, तो उसके लिए भी हम साइटेशन डालते हैं। तो मिनिमम लिमिट जो है साइटेशंस की आप पेटेंट के अंदर डालें, ज्यादा बेटर है। I think Shatabdi ma'am will get the answer. क्लोजली रिलेटेड प्रायर आर्ट मैं एडवाइस करूंगी शताब्दी, क्लोजली रिलेटेड प्रायर आर्ट तो कभी ना डालें। जैसे फॉर एग्जांपल इन्फेंट वेरेबल डिवाइस, मैंने टाइटल जब सर्च किया गूगल पे तो वी गॉट लॉट ऑफ पेटेंट्स रिलेटेड टू द सेम टाइटल, ठीक है। अगर मुझे लगता है कि एक पेटेंट बिल्कुल एब्स्ट्रैक्ट बिल्कुल मैच कर रहा है, मेरे से बिल्कुल रिलेवेंट है, तो वो पेटेंट तो बिल्कुल साइटेड में ना डालो, क्योंकि अगर वो पेटेंट आपने डाला तो पेटेंट ऑफिस उसी पेटेंट को उठा के आपसे बोलेगा आप ये बताओ इस पेटेंट से आपका इन्वेंशन कैसे डिफरेंट है। और ऐसा हमारे साथ बहुत बार हुआ है कि हमने जो पेटेंट साइटेशन में डाले थे वही पेटेंट हमारे एफआईआर में आ गए। Ma'am, one more question from Shatabdi ma'am again. This is last question. Can you hear me, ma'am? Yes, yes. Why are US patents considered more important than that of any other country such as Australia, America, Australia, Korea, etc.? क्या सर, प्लीज रिपीट द क्वेश्चन। Why are US patents considered more important than that of any other country such as Australia, Korea? नहीं ऐसा कुछ नहीं है। देखो पेटेंट जो होते हैं ना हर कंट्री के, सर क्या होता है डिफरेंट टाइप्स ऑफ पेटेंट एप्लीकेशन होते हैं, जैसे यूटिलिटी पेटेंट्स हो गए, स्टैंडर्ड पेटेंट्स हो गए। प्लीज लेक्चर में करती बात, ठीक है। तो हमारे जो ऑस्ट्रेलियन पेटेंट अभी आपने देखा होगा फाइल हुए थे, तो वो आपके क्या थे, इनोवेशन पेटेंट थे। में जो फाइल करते हैं स्टैंडर्ड पेटेंट, और यूएस में भी जो फाइल होता है वो स्टैंडर्ड पेटेंट है। तो जितना इंडियन पेटेंट की वैल्यू है उतनी ही वो यूएस में स्टैंडर्ड पेटेंट की वैल्यू है। बट जब मैं बात करती हूँ इनोवेशन पेटेंट की, यूटिलिटी मॉडल्स, यूटिलिटी पेटेंट जैसे जर्मनी के पेटेंट है, ठीक है, आपका ऑस्ट्रेलिया का पेटेंट है, ये यूटिलिटी पेटेंट्स हैं जिनकी जो वैल्यू जो टाइम है वो सिर्फ 8 साल होती है, 8 या 10 साल। 8 और 10 साल के बाद ये खत्म हो जाएंगे। तो आप इनसे कंपेयर करो कि अगर हम एक ऑस्ट्रेलियन पेटेंट से कंपेयर करें इंडियन पेटेंट को, तो उसमें किसकी वैल्यू ज्यादा है, तो उसमें इंडियन की वैल्यू ज्यादा है, क्योंकि इंडियन वाला 20 ईयर्स के लिए राइट्स मिलेंगे और स्टैंडर्ड पेटेंट होगा। बट अगर हम इंडियन और यूएस की कंपेयर करें तो दोनों पेटेंट की इक्वल वैल्यू है, क्योंकि दोनों ही स्टैंडर्ड एप्लीकेशंस हैं। Thank you so much, ma'am. Now there are no questions anymore in the chat box, and thank you, ma'am, for giving us time from your very tight schedule, and the session was very enjoyable and informative, no doubt. I get to know many things which I didn't know previously regarding the patent. मुझे बहुत सारी चीजें आज कुछ समझ में आई हैं जो मुझे पहले से पता नहीं थी। Thank you so much. And I request all the participants that Pooja ma'am has shared his her mail ID and mobile number in the chat box. Yes, yes. If you have any queries, you can directly contact me. Okay. And regarding patents also, if you have any ideas that you want to file a patent for the same, you can contact anytime. The charges are very nominal, you know. Students के लिए तो मैं बहुत ही वैसे भी डिस्काउंट देती हूँ। अगर स्टूडेंट के आइडियाज है तो स्टूडेंट मेरे पास आप सोचो 12,000 में अपना पेटेंट फाइल करा सकते हैं, ठीक है। ये सिर्फ डिस्काउंटेड प्राइस है स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि मुझे पता है स्टूडेंट्स के साथ दिक्कत क्या होती है, आइडियाज तो कई बार बहुत अच्छे होते हैं बट फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स होती है।
तो अगर स्टूडेंट्स हैं 3-4 स्टूडेंट मिलके भी अपना एक पेटेंट फाइल कराओ तो आपको मतलब 2-3 हजार रुपए से पर पेटेंट पड़ेंगे. दैट्स अ वेरी नॉमिनल चार्जेस. Okay, so you can contact me anytime. I have shared my number 9910627125 and I've shared my email ID also pooja@innovintellects.com. Thank you. Thank you, sir. Thank you so much, ma'am. And ma'am, in chat box personally, many participants are praising your presentation. So thank you so much. Okay. It's very So wonderful. I'll do one thing. I'll share my presentation to you. Okay, sir. Yes. Okay. Thank will you. great. Chali. Bye bye. Thank you. Bye, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you so much. Dear participants, so we will meet you tomorrow at the same time. Till then, have a good day. Thank you.